Warm greetings. Welcome to Wednesdays for Water. We are a citizens collective aiming to walk and talk water. We try to meet every week and connect people with various water worries and wisdoms. And in the process, we wish to curate future water warriors. The way we talk about trivial things for hours, water too needs walking and talking to address the rising water distresses. The way Wednesdays for Water is conceptualized as a prime time show, it wishes to make water everybody's business. The idea of the series was conceptualized in August 2020, and by the end of the year, the team and the structure was pretty much in shape. We started in April 2021 with Dr. Rajendra Singh Ji's inaugural speech. We wish to bring science and society together, and therefore we try to bring in every session either a policymaker or practitioner and a researcher or academician. We also think that future generation is crucial and therefore they have presence in each session. We are going stronger with every week now with session on either quiz, couple of weeks of hard talks and a week of soft session of art and music. There is a simple structure for each session of quiz, hard session and soft session which are moderated by the core team member. Here is a glimpse of what we call as hard sessions and soft sessions. Good evening, everybody. Welcome to one more session of Wednesdays for Water. Today we are discussing wetlands action for people and nature. Today is also the World Wetlands Day, which is declared by Ramsar. And we have a very special day to discuss with us, people and nature, about the wetlands. We have Monde, and he is a Padma Shri awardee from 2016. And I'm going to give a bit of the background of the session today as well as background. Okay, as we call him actually. So Wetlands Day is now a Ramsar World Wetlands basically day to celebrate all the Ramsar sites, but at the same time all the lakes and ponds and all other water bodies in the world, including rivers. Today is also an important day because many of the events are marked globally. If you look at the Ramsar site of and World Wetlands Day site, you will find that today's event is also marked there. And many of us in our group also did a small, a celebration of World Wetlands Day, and we have a small video for it. I will have to ask my team when they are wishing to play the video. But meanwhile, I will just do a small introduction to Bhalu Monde sir, as we call him with a lot of love. He's a well-known Malvar region environmentalist, and he has a very interesting life, to be honest. And one of the rare awardees who is not only known for environmental activism as well as actions on the ground, but he is also very well known for his wildlife photography, painting and sculpting, tribal art and other activities. So I have a small PowerPoint to show his life because that makes it very interesting to show his photography and artwork. So instead of talking, I'm going to show the work through him because he has an oral speech today. So I thought it will be justice to his work if I show some work through the PowerPoint. So Megha, may I share the screen if you can remove it? Yeah, thank you. तो भालू सर पहले मैं आपका थोड़ा सा वीडियो दिखा के इंट्रोडक्शन कर देती हूँ. Then I will give you the floor to speak. Okay? Yeah. So do you see the screen? Yeah. Yes, we don't see the screen. And full screen, right? Yes. Okay. Okay. So those of you who know him from Malwa, or those of you are from wildlife or aquatic life or wetland, you may be knowing that he is not only known for wetlands, but he is a painter, sculptor, as I was mentioning, one of the rare awardees in the country who is not only environmentalist, and he's also writing a lot, both in media as well as his own writings. And I'm going to show you an interesting book which he has written. And he's best known for photography.
So actually his photography brought him to nature. So if you look at his biography, he's also a TEDx speaker. And I'm just showing very few things from his artwork, right? From the tribal art to the nature art, actually. So, and he works directly with the artisans. So he's really a grounded person, as I know him for nearly 20 years now, but I just met him 10 years ago. So yeah, he's based in Indore, but he is now advising all the state governments and environmental NGOs to really look at tigers especially, and all kinds of birds. So when I come to his passion for birds, as I was mentioning, so his passion for environment and birds are all through his camera, and he is going to tell more about it. But in Indore, he is not only the father of Sirpur Lake, which is now a national bird reserve, you can say. He was the first person to spot more than 150 birds in that wetland and really push the government to declare it a national asset. So wetland is one part of it, but the important part of it is the birds which he spotted. And if you really sit with him and start talking about birds, he has story for every bird. Who is coupling with who is coming on which time of the year, how do they breed, how do they feed each other, how do they fight with each other. And that's what is good to sit with him and talk about. And we are going to have a very candid talk from him today. So I'm just showing some of the pictures, and his first spot was, these some birds from his work. I've just picked it up to show. Later in his journey, he started in 1964, by the way, so it's long journey. And he is almost the father of Sirpur, we can say. At least in Indore, we all know him as like he really parented this lake to save it from the amalgamation into urbanization. So it's at the fringe of the city. So the lake had all the probability to get filled up and become any urban development. But it is his actually continuous effort to save this water body, not only from the urbanization, but also to save it from the villagers. So what kind of farming they should do so that the pesticides are not coming into the water body. So he's now nearly spent, I think, 30 plus years on this lake. So I will actually wish that this lake is now eventually named after him now, but it has a beautiful name related to the village. So he runs this, the nature volunteers. When he actually realized that it has to be formalized, the movements which he was doing and all. And then, of course, the rest is all history in his work. He's not only mobilizing people, getting into the water body with the people and getting into cultural aspects of it, the ecological aspects of it. And this is one of his most celebrated picture, by the way. You see this bird with the beak in the water, but there are hundreds of pictures which you can see of his work. And that is collated in a beautiful book of birds of Sirpur. I do have that book, by the way. It is gifted by him. And as I mentioned, his photography helped him not only get into the wetland issue, but I think also engage in a very unique way with the community. He's one of the also rare environmentalists, I will say, who has successfully mobilized not only local community, but also the local government and the state and national government with his activities, because his determination with that one lake, and then with that lake as a model, he has actually advised many lakes in the country. So that's how I know him today. As I mentioned, he's not only a wetland person, not only a photographer, painter, sculptor, but if you really want to learn how to mobilize, I think for me, he was one of the first person to learn how to do community mobilization at all scales, from villagers to chief minister, as you can see from here. So I will stop here to speak a little bit about the lake, and then hand it over to Bhalu sir, because he has transcended lake. And now he also talks a lot about tigers and all other animals, all the wildlife. So not only a father of the birds, more than 150 birds, as I mentioned. So, sir, we would like to hear from you, not only your journey from Dusseldorf. I didn't say much about your journey because I know you are going to make a beautiful story out of it. So, right from Dusseldorf to here, and making Sirpur our national asset, and of course, advising other
states and other activists how to mobilize not only people but also birds and animals. भालू जी, thank you so much for coming. आप कोई भी लैंग्वेज यूज करिए, मैं तो आपको सुनना चाहती हूँ, बहुत मजा आता है आपको सुन के. थैंक यू सो मच. आप अनम्यूट कर लीजिए सर. हाँ, हम आपके साथ वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिकॉज पीपल एंड नेचर आजकल. आवाज आ रही है? जी सर, बोलिए. हाँ, तो मैं एक 3 मिनट की फिल्म दिखाना चाहता हूँ पहले. श्योर सर. तो उसके शुरू करते हैं. 3 मिनट का फिल्म है. उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट. यस सर. हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी. किसी समय यहाँ 10 बड़े-बड़े तालाब होते जिनसे क्लियर स्क्रीन करना पड़ेगा सर. अब वी आर नॉट सीइंग इट. हाँ, वही 1 मिनट. शेयर करना पड़ेगा ना. इंदौर अरे यार, क्यों हो रहा है? आई थिंक उसको आपको पहले, हाँ, आप आ रही है. ठीक है, बड़ा कर दो. ठीक है. नहीं सर, बड़ा नहीं हुआ है, पूरे स्क्रीन पे नहीं आया है. इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर. आई थिंक सर, आप पहले अपने उसमें वीडियो को ऑन कर लीजिए, बाद में स्क्रीन शेयर करिए. किसी समय यहाँ 10 बड़े-बड़े क्या करना है? पहले आप वीडियो को ऑन कर लीजिए अपने लैपटॉप में, हाँ, और हाँ, उसके बाद स्क्रीन शेयर करिए. पहले अच्छा, स्क्रीन अच्छा, शेयर करके हाँ, वीडियो देता हूँ. मत ऑन करिए. हाँ, ओके. इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी. किसी समय यहाँ 10 बड़े-बड़े तालाब होते जिनसे पूरे शहर को पानी मिलता है. उनमें से 5 तालाब तो इन इमारतों के नीचे दफन है और 3 की हालत बेहद खस्ता. इंदौर का ही एक तालाब ये भी है, सिरपुर तालाब. 260 हेक्टेयर में फैला ये तालाब अगर आज जीवित है तो इसकी सिर्फ एक वजह है, भालचंद्र मौर्य. बहते हुए वक्त के कुछ पलों को कैद कर लेना एक शौक भी है और पेशा भी. पेंटर, मूर्तिकार और फोटोग्राफर भालचंद्र मौर्य का. सिरपुर तालाब के पास ही खेल कूद कर बड़े हुए. तालाब के साथ साथ बचपन की यादों को मिलते हुए नहीं देख पाए. सिर्फ 10 साल पहले सिरपुर का तालाब इंदौर के दूसरे तालाबों की तरह मर रहा था. 80 और 90 दशक में तालाब बहुत ही खराब अवस्था में था. पानी बहुत गंदा, कपड़े धोना, कपड़े फेंकना, और जैसे लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया था. ढोर गाय जो चलते थे, पानी पिलाते थे, उसके नाम से दूसरे लोग अनवांटेड पीपल सेटिंग दे रहे. कुछ सालों तक जिला प्रशासन के चक्कर लगाते रहे, लेकिन नौकरशाही के चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं था. अकेले की आवाज इतनी ताकत नहीं थी अकेले की आवाज में. फिर एनजीओ का एक आइडिया आया कि एनजीओ फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए.
और थोड़ी सी ताकत बढ़ाना पड़ेगी कहने के लिए। धीरे धीरे भालचंद्र की अकेली आवाज एक आंदोलन बन गई। शुरू हुई नेचर्स वॉलेंटियर्स एसोसिएशन। मकसद हर कीमत पे सिरपुर तालाब की रक्षा। फिर इनको चॉइस नहीं था, इन्हें एक्शन प्लान बनाने के लिए हमको बुलाया, इनवाइट किया, कलेक्टर की बैठक हुई। ऐसा धीरे 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 गाड़ी खसती है। शहर की इस आवाज के आगे नौकरशाही को झुकना पड़ा। 5 साल के संघर्ष के बाद सन 2000 में तालाब की मरम्मत शुरू हुई। आज ये इंदौर का एक माइलस्टोन है, लेकिन नेचर्स वॉलेंटियर्स एसोसिएशन आज भी इसे संभालने में जुटी है। मूर्तिकार मौलिक खुश है कि कुदरत की इस कृति को बचा पाए। वो थैंक यू सो मच सर। हम धन्यवाद। चाहेंगे आपकी जर्नी। एक आइडिया आएगा आपको कि हाउ वी स्टार्टेड लॉन्ग बैक नाउ। यस, तब करीब 15 साल हो गए इस फिल्म को भी। दिल्ली से टीम आई थी और उन्होंने दिन भर में ये बना दी है 3 मिनट की फिल्म। तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हाउ वी हैव स्टार्टेड। 92 में हमने एनजीओ एस्टेब्लिश किया हमारा, और उसके बाद आज भी उतने ही लोग हैं, 8-10 लोग हैं हमारे पास, ज्यादा नहीं है। जो फील्ड वर्कर है उसमें बर्ड एक्सपर्ट है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो भी होता है, तो फॉर्मेशन पूरा है हमारे पास। ATG है हमारे पास। वी डू गेट फंड्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिच पीपल, और उससे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उससे हम उसमें पैसा लगा देते हैं। इस नॉन प्रॉफिट हमारा एनजीओ है जिसमें हम प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। पूरा अकाउंट है हमारे पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एवरीथिंग, रिपोर्ट बनती है पूरी हर साल। और हम किताबें, अवेयरनेस प्रोग्राम और स्कूल में जाके जो बच्चों को हम सिखाते हैं, इंदौर के स्कूल, कॉलेज और आखिरी मतलब इवन IIM तक गए हम इंदौर के, वहां तक उनको वहां सब बताया है कि तालाब पे क्या होता है एक्चुअली। और पहले हम पावर पॉइंट से स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके बताते हैं, और उनको फिर बस लोड पूरा सिरपुर में लाते हैं। वो तो करीब कभी कभी 80 लोग, 2 बस लोड है तो 100 लोग आ जाते हैं, एक बस है 50 लोग, ऐसे करके हम उनको तालाब पे एक्चुअल घुमाते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूस रहता है। और उसके सिवाय हमने अभी किताबें निकाली है 2-3 हमारी, जो आपने सिरपुर पे निकाली है। वो ये एक और किताब है, ये बर्ड्स ऑफ इंदौर है। बर्ड्स ऑफ इंदौर है, इसमें 25 किलोमीटर इंदौर राउंड द इंदौर, 267 बर्ड्स, 275 बर्ड्स इसमें इंक्लूडेड है जो इंदौर के आसपास है। और इंदौर के आसपास करीब 10 स्पॉट्स है, वेटलैंड और जंगल एंड ऑल दिस थिंग, लाइक ए टाइगर लैंड भी है थोड़ा सी पास में, जहाँ पैंथर वैंथर तो आता ही है। तो उसमें जो बर्ड मिलते हैं वो पूरा रिकॉर्ड किया है इसमें। एक और किताब हमने अभी निकाली है जो थ्रेटन बर्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश है, थ्रेटन बर्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश है। ये रिसेंटली हमारे को बायोडाइवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ने स्पॉन्सर की है। और इसमें करीब कितने बर्ड है इसमें अंदाजा? इसमें सर लगभग 50 के ऊपर जो बर्ड अभी वैनिश हो रहे हैं। और ये दिस इज ए खरमोर जो कवर पे है, ये एक बंगाल फ्लोरिकन हुआ है, जो लेसर फ्लोरिकन कहलाता है, खरमोर कहलाता है इसका हिंदी नाम है। और ये रतलाम, सैलाना और झाबुआ के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। पर ये 2-3 हम 10 साल 15 साल से इसका भी स्टडी कर रहे हैं। इसका अभी तक बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, और ऑलमोस्ट 300 बर्ड्स इन द वर्ल्ड ओनली इन इंडिया, दैट टू सेंटर पार्ट ऑफ द इंडिया अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ये बर्ड्स। और उसके बाद अभी कुछ पता नहीं ज्यादा, साइंटिफिकली इसको कैप्चर नहीं कर सकते। जो WII इंस्टीट्यूट है वगैरह, उनसे सब इंस्ट्रक्शन है कि हाउ टू सी एंड वेयर टू सी, और इसके अंडे बच्चे सब फॉलो हो रहा है। पर उसका एक प्रोजेक्ट भी रखा है हमने इसके लिए।
खरमोर जो सेंचुरी डिक्लेयर्ड है वहाँ पे रतलाम में, सैलाना में, और इधर धार झाबुआ में 2-3 जगह छोटी छोटी सेंचुरी डिक्लेयर्ड है। उस पे भी हमारा काम चल रहा है, पर अब सरकार को हमारा काम है कि प्रेशर लाना, और प्रेशर से जो होता है काम, देर इज नो मनी इन्वॉल्व, देर इज नॉट बिग बिग पीपल इन्वॉल्व। हम प्रेशर लाते हैं, भोपाल तक ले जाते हैं, सीएम तक ले जाते हैं, इवन एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, इफको जो गवर्नमेंट का एनवायरमेंटल सेल है, उसमें भी प्रेशर लगाते हैं। वहाँ के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, ऐसे एक्सचेंजेस होके, और एक टोटल प्रेशर थ्रू मीडिया, थ्रू पीपल, थ्रू whatever it is the source we have, उससे हम अवेयरनेस लाते हैं और उसको एक्चुअली मीडिया से हम लोगों को समझाते हैं। तो ये हमारा बेसिक काम है वैसे। और कंटिन्यूसली हमारे हर हफ्ते में हम राउंड लेते हैं सिरपुर का। अच्छी एक खबर है, सिरपुर एंड यशवंत सागर नियर इंदौर, that is 2 lakes are now going to be declared for रामसर साइट। ये एक अच्छी खबर दे रहे हैं आपको कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 लेक को मध्य प्रदेश में, अभी सिर्फ एक है मध्य प्रदेश में जो भोज वेटलैंड है, उसको रामसर साइट डिक्लेयर्ड है वो। और वो तो बहुत बड़ा लेक है, मतलब सैटेलाइट से दिख सकता है, इतना बड़ा लेक है भोपाल का। बाकी ये 2 लेक जो सिरपुर और यशवंत सागर है, इंदौर के पास है ये दोनों। और एक सारस हैबिटेट है, सारस का हैबिटेट है 92 में डिक्लेयर किया है IBA, और सारस हैबिटेट। और हमारा सिरपुर है which is having a 170 bird almost round the year माइग्रेशन होता है यहाँ पे पूरे फुल फ्लैश। करीब 40 से 50 बर्ड्स आर ब्रीडिंग हियर, माइग्रेटेड बर्ड आल्सो 30 से 40 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डक्स ब्रीडिंग हियर। उसका हैबिटेट पूरा बना है, सारस तक आता है। और फ्लेमिंगोज वंस ए वाइल, मतलब हर 2-3 साल में यहाँ पे आया जाते हैं अरब सागर से। तो माइग्रेशन उस तरह का है, पर रेयर, मतलब 2 साल पहले करीब 8 काउंटेड 8 बर्ड्स ऑफ फ्लेमिंगोज आए थे यहाँ पे। और करीब 15 दिन रहे वो इंदौर कंटिन्यूअसली विदाउट गोइंग एनीवेयर, देयर सेम स्पॉट पे वो ऑलमोस्ट वहीं उनका हलचल थी पूरी, और पूरा इंदौर अट्रैक्टेड हो गया था उसके लिए। तो बहुत ही एक सुखद वो था हमारा एक्सपीरियंस। और मतलब ये 2-3 बार हुआ है। फ्लेमिंगोज विजिटेड 2-3 साल में आ ही जाता है इधर से उधर से एक साथ। एक बार बच्चे के साथ एक ही बर्ड और एक बच्चा ऐसे आए थे, वो करीब 5-7 रोज हमने ऑब्जर्व किया उनको। फिर गए साल 8 आए थे 2 साल पहले, उसके पहले 2-3 आए थे ऐसे। तो ऐसा मतलब माइग्रेशन ऑफ इवन दैट सॉर्ट ऑफ बिग बर्ड इज हैपनिंग। अब वो क्यों होता है, ये क्यों होता है, आई एम नॉट ए वेरी एब्सोल्यूट साइंटिस्ट पर्सन, बट हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करते हैं। तो ये प्रोसेस राउंड ईयर हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आई एम ए फील्ड वर्कर मोर देन द कंप्यूटर एंड ऑल दैट, क्योंकि हम आसपास के लेक पे जाते हैं। यहाँ पे खिवनी नाम से एक फॉरेस्ट है जिसमें टाइगर भी है। दैट इज अबाउट 150 किलोमीटर यहाँ से, इंदौर से। नियरेस्ट दैट इज खिवनी इज ए टाइगर सेंचुरी है, छोटी सी सेंचुरी है। मध्य प्रदेश सरकार की सेंचुरी, इज नॉट ए नेशनल पार्क, बट वहाँ पे सब व्यवस्था है। वहाँ पे हमने 2 साल पहले लेक बनाया वहाँ पे पानी का, क्योंकि वहाँ पानी के सीमेंट के पॉन्ड थे छोटे छोटे जो सरकारी तौर पे होते हैं। 20-25 फुट का एक छोटा सीमेंटिंग पॉन्ड करते हैं, उसमें टैंकर से पानी डालते हैं। तो हमने कहा व्हाई नॉट, यहाँ पे कोई बारिश की कमी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ढाल पे या टेक्निकली जो सर्वे होएगा उस पे एक तालाब किया जाए। तो वो क्रिएशन हुआ है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे तालाब का क्रिएशन भी किया है। और इस तरह के मतलब शुरुआत जो है वो प्रेशर लाते हम कैसे भी करके। MLA वहाँ का MLA थे वहाँ पे, विधायक थे, उनको हमने मीटिंग में, हमारी मीटिंग जब फॉरेस्ट में गए तो मीटिंग हुई, मीटिंग के साथ हमने हमारा जो बोलना था वो बोला। उसमें हमने कहा यहाँ जरूरत है लेक की, क्योंकि यहाँ टाइगर तक का बिग बिग कैट है, यहाँ पे पैंथर है, हाइना है, सभी है, और सबको पानी पीने के लिए आपने जो सीमेंट के बनाया उससे तो अच्छा है कि एक आपका JCB लगा के एक बड़ा 50-100 एकड़ का तालाब बन सकता है, क्योंकि जगह कमी नहीं है वहाँ पे, और जंगल है ऑफ कोर्स। तो उसमें उनको सिर्फ खुदाई करना है, और खुदाई में 8 महीने में तो पानी आ जाता है, हर 8 महीने में बारिश का पानी है अपने। तो तालाब क्रिएशन
इसे अपने यहाँ इतनी जमीन पड़ेगी यहाँ भी हिंदुस्तान में, मैं कोई कमी नहीं, इट्स नॉट वी आर नॉट हांगकांग सिंगापुर की जमीन की कमी है, यहाँ जमीन ही जमीन है यहाँ पे। और खेतों में भी लोगों ने तालाब किए हैं, तो हम तो गवर्नमेंट को ऑल टाइम कह रहे हैं, हम कंटिन्यूसली कहते हैं कि हमको ऐसी बैरन जमीन दो, हम जो तालाब कर देंगे वहां पे, और नेक्स्ट बारिश में आपको पानी दिखा देंगे वहां पे। इतना प्रैक्टिकल है, विद इन 1 ईयर यू कैन डू, जेसीबी से एक 10-20 एकड़ का तालाब आराम से हो सकता है। ऐसे कितने तालाब आप कर सकते हैं। तो ये अब मतलब पंचायत तक जाना, पंचायत को फिर उसमें क्या है, एमएलए इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जमीन रेवेन्यू होना, किसकी होना, ये सब है इन्वॉल्व। पर ये होने के बावजूद यदि प्रेशर कंटिन्यूस रहा तो हम वो करते हैं, कैसे भी करके हम उसको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी कोशिश चलती रहती है हमेशा। तो ऐसा है कि जमीन को पानी की बहुत जरूरत है, और पानी मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अपनी, और इट इज एंडलेस प्रोसेस है वो, कि पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी, मतलब आज 150 करोड़ हो जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगी, मालूम नहीं क्या पिक्चर होएगा उसका। पर प्रेशर तो आएगा, जमीन पे ही आएगा, जमीन, जंगल और जानवर पे प्रेशर आएगा। और प्रेशर रिलीज करने के लिए, मतलब आज जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया चीज है कि सबको एक्टिव कर रहे हैं वो, तो वही है कि अपना भी एक नेचर के लिए अपन एक्टिविटी लाए, उसमें जितनी ज्यादा ज्यादा लाएंगे उतना उसका फायदा मतलब इन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपन उस जमीन पे खड़े हैं। और हर चीज जमीन से हो रही है, मतलब आपको खाने पीने से तो हर चीज वहां से ही हो रही है, चाहे आप आईटी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी प्रोग्रेस ले लो, तो जमीन में खदान है, अंदर जाओ तो उसमें और पाताल है, तो जो भी है वो सब जमीन से तो जुड़ी हुई है चीज। तो जमीन को समझना, और उसको बच्चों से हम पूरा कर रहे हैं प्रोसेस की, बिल्कुल छोटे बच्चे, मतलब नर्सरी तक के बच्चे को हम लाते हैं वहां सिरपुर पे दिखाते, मतलब हमको आधा दिन लग जाता है उसमें। पर यही प्रोसेस है कि जितना ज्यादा लोगों को दिखाएंगे आप और समझाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर और आपके मोबाइल पे नहीं हो सकती चीज, ऐसी ऐसी चीजें है कि जो प्रैक्टिकल आपको लेक साइड पे जाना ही पड़ेगा। जंगल में टाइगर देखना है तो जंगल में ही जाना पड़ेगा। टाइगर जू में है, पर वो एक अलग चीज है। जू टाइगर और जंगल टाइगर इज ए वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब डे एंड नाइट का डिफरेंस है उसमें। देख रियल टाइगर जब आप एक बार भी देख लेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा कि आपको घड़ी घड़ी देखना है और कभी हटना ही नहीं वहां से, ऐसी साइट है वो। इट्स ए लाइक ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो। आप कितनी बार भी देखो, हमेशा उसको आपकी तड़प खत्म ही नहीं होगी, इस तरह की चीजें वो। तो बाकी मैं कहूंगा कि अब जिसको कुछ पूछना हो या कुछ क्यूरियोसिटी हो या इस तरह के क्वेश्चन हो, तो वेलकम फॉर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और एक ये ब्रोशर है हमारा, छोटा सा ब्रोशर है ये, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे स्कूलों में, कॉलेज में जाके, और जो हम इसमें बर्ड के फोटोग्राफ है पूरे इसमें, तो ये हम फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। इसको हमारा प्रोडक्शन है ये छोटा सा, और फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को देते हैं, स्कूलों में जाके देते हैं। तो इस तरह की चीज, अवेयरनेस प्रोग्राम कंटिन्यूस है। फिर हमारे पास मीडिया के साथ हमने इतना अच्छा रेपो करके रखा है कि वो हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हमारे बारे में, एनजीओ के बारे में, झाड़ फूल पत्ती के बारे में, पानी के बारे में, तालाब गड़बड़ हो रहा है, लोग गड़बड़ कर रहे हैं, झाड़ पेंट कर रहे हैं, मतलब सिटी अर्बनाइज भी हमारे इंदौर में खूब सारी चीजें की झाड़ों को पेंट लगा रहे हैं अब वो अभी, तो वो भी उसको ऑब्जेक्शन लेना, मतलब ये दिख रहा है, आते जाते दिखता है कि झाड़ों को पेंट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं। अब उनको वो पैसा बनाना या जो भी होगा उनका एक टारगेट होगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा। ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको उसका एस्थेटिक बहुत जानना जरूरी है हर चीज को, क्योंकि हमेशा रंग रोगन से नहीं होता है। शादी में सिर्फ डेकोरेशन इज नॉट द ओनली पार्ट, उसका एटमॉस्फेयर लाना, उसको राइट लोगों को अंदर उसके संवाद होना है, उसमें एटमॉस्फेयर लाना है, खाने पीने का एटमॉस्फेयर होना है, तब शादी सक्सेसफुल होती है। मतलब इट्स नॉट ए डेकोरेशन, इज नॉट ए बाजा और डिस्को और ये वो ऊपर की चीजें है वो। तो उसको सब मिला के ओवरऑल हम करेंगे तो ब्यूटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट है ये हर को नहीं जमता है। और नगर निगम जैसी जगह में या हमारे यहाँ जो आईडी है या इवन मध्य प्रदेश सरकार है, इनमें एक्सपर्ट की कमी है, यही कहूंगा मैं, क्योंकि इनमें
एस्थेटिकली लोगों की कमी है वहाँ पे, दे डोंट आस्क एक्सपर्ट्स टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, या एक ऐसी कमेटी नहीं बनती कि जो ब्यूटिफिकेशन के लिए बातचीत करे और सरकार के साथ डायलॉग करे। ये हम हमेशा कंटिन्यूअसली प्रोसेस है हमारा, यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर और नगर निगम के साथ मीटिंग करते रहते हैं। पर अब ऐसा है, वी आर वेरी स्मॉल पीपल इन द होल थिंग, क्योंकि हमारे पास ऐसे पैसे के प्रोजेक्ट नहीं जो हजार करोड़ के प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो उसका अट्रैक्शन हमारे पास कम है। गवर्नमेंट हमको ज्यादा पूछती नहीं है, पर पूछती नहीं तो ठीक है, जो भी एक सेकंड थर्ड रेट का डेकोरेशन होता है उसी पे उनको प्राइज भी मिल रहे हैं। अब वो भी कह सकते हैं अपन कि 5th प्राइज मिल गया इंदौर को ब्यूटिफिकेशन में और स्वच्छता में। तो स्वच्छता एक अपनी जगह है और ब्यूटिफिकेशन अपनी जगह है, रंग रोगन अपनी जगह है, पर ये इसके लिए हर चीज के लिए एक्सपर्ट बैठे हैं। उसके लिए कोई फॉरेन और इंग्लैंड और जर्मनी जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ही आपको सब कुछ मिल सकता है। पर अब वही है कि कमेटी बनना, कमेटी की सुनना, फिर उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होना है। मतलब ये क्या है कि सरकार अपने पे थोपती है ज्यादा, तो जनता की कम सुनती है, वो हमेशा थोपे जाती है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन इज ओनली वन वे चलता है, जो भी करते हैं वो उनके तरफ से ही चलता है। वो कि आज सिल्वर पेंट होना है इलेक्ट्रिकल खंभों के, तो कल वो ग्रे हो जाएंगे, परसों ग्रीन हो जाएंगे, परसों और कुछ हो जाएंगे, पीले नीले चाहे जो हो जाएंगे। मतलब ये सब कौन डिसाइड करता है ये नहीं पता अपने को, और हो जाता है वो। मतलब हर गांधी जयंती को हमारा गांधी सर्कल नए रूप लेता है वो, मतलब उसका एक परमानेंट कुछ नहीं है। तो कभी नीला है, तो कभी नींबू कलर है, तो कभी लाल रंग है, तो मालूम नहीं क्या क्या होता है वहाँ पे। तो कौन डिसाइड करता है ये नहीं पता पड़ता है। और इसमें हम ये हमेशा कहेंगे कि एक कमेटी होना चाहिए सिटी की, और जो एक डिसाइड करे कि किस डायरेक्शन में अपने को ब्यूटिफिकेशन का एक हिसाब किताब करना है, जिसमें आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और सब एडमिनिस्ट्रेटर ये सब इन्वॉल्व होकर एक कमेटी बनना चाहिए, उसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। जैसे पैसा इज द ओनली थिंग दे हैव, पैसा ग्लो करो उसको बस, क्योंकि खत्म हो जाएगा बजट, पैसे के पहले उसको उड़ा देना है, ये कोई टारगेट नहीं चाहिए ऐसा, उससे काम बिगड़ता है। ब्यूटिफिकेशन तो मालूम नहीं हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना रंग रोगन अभी इंदौर में कर मारा है इनने कि हर जगह चित्र है, हर जगह मास्क लगे हुए, फोटो लगे लोगों पे बड़े बड़े, मतलब हर सरकारी दीवार या क्लब की दीवारों पे हर जगह इनने पेंट करके उसका एक तरह से नाश ही किया है हम तो कहेंगे। क्योंकि जितना प्लेन में जो सोबरनेस है प्लेन दीवारों में जो भी है, उसको उसको मेंटेन करना बहुत इजी है। और ये बड़े बड़े पेंटर नए नए कुछ चित्र ला रहे हैं वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ जेल है, तो इतने बड़े बड़े ओवर पावरिंग पिक्चर्स वहाँ पे हमने फोटोग्राफ पेंट किए है कि मतलब मालूम नहीं, यस और नो में कुछ नहीं कह सकता उस पर। मेरी कमेंट तो है कि आई डोंट लाइक इट। तो सीधी अपन बात करते हैं उस पर। अब आपको जो पूछना है वो पूछे, मैं तो बोलता ही रहूंगा नहीं तो। सर मुझे आपसे पूछना है कि आप 40 साल तक एक लेक से कैसे प्यार कर सकते हैं, बिकॉज ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आपके करियर के शुरू में से आप तो लोकल अथॉरिटी के लिए तो विलन ही रहे हैं ज्यादातर समय अपनी जिंदगी में, तो वहां से लेके अब लोकल अथॉरिटी के फादर बन गए हैं आप लेक्स और वेटलैंड्स के लिए। आपसे पूछे बगैर तो इंदौर के आसपास कोई नहीं लाएगा, कोई लेक में एक खंबा भी नहीं डालने जाएगा। ये जो 40 years में यू चेंज द वे पीपल लुक एट एन एनवायरमेंटलिस्ट, यू नो। अभी भी आपने बिल्कुल ठीक बोला, एनवायरमेंट के लिए आप पैसा नहीं निकालेंगे जितना सड़क में रंग करने के लिए, खंबा रंग करने के लिए और कोई पेस्टर लगाने के लिए। बट फिर भी अगर मैं आपके, क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मैं इसलिए ये बात कह सकती हूँ कि जो आपने ये स्ट्रगल करके एक विलेन से अब आप फादर ऑफ एनवायरमेंट का जो जर्नी है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया 2016 में पद्मश्री से। तो यूथ को ये जानना जरूरी कि हाउ टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग एंड फॉल इन लव और राइज इन लव फॉर दैट मैटर। एंड स्पेशली आपका जो एक बैलेंस ऑफ लुकिंग एट नेचर एज वेल एज पीपल, क्योंकि हम आज वो भी देख रहे हैं कि इस बार का थीम भी उन्होंने यही रखा है कि आपने जितना समय अपने, जैसे आप सिरपुर तो एक समय में रोज ही जाते थे, ये भी मुझे पता है, आप आज कम जाते हैं, पर वहां जाके रोज जाके डंडा लेके बैठ जाना
और लोगों से लेक को बचाना, ये जो मोटिवेशन सब फोटोग्राफी से आया, ये तो लिखा हुआ दिखता है, बट आई वुड लाइक टू नो कि कैसे आपने लेक को अपना बना लिया लिटरली, और यूथ को कैसे हम कन्विंस करें कि इवन इफ अगर सब लोग हम लोग एक लेक अडॉप्ट कर ले तो भी काफी, आई थिंक काफी प्रोटेक्शन हो जाएगा वेटलैंड्स का। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर, कुछ बर्ड्स की स्टोरी तो आपको बतानी पड़ेगी। हाँ, बता। इंटरेस्टिंग बर्ड्स की स्टोरीज है, किसने किसके साथ घूमा, कब कौन आए, आई थिंक दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और आज हम पहली बार एक्चुअली बर्ड्स की बात कर रहे हैं। 10 महीना हम लोग वेडनेसडेज फॉर वाटर चला रहे हैं, अभी तक हमने बर्ड्स पे डिस्कशन नहीं किया है, तो वी वुड लाइक टू हियर सम ऑफ द बर्ड स्टोरीज आल्सो। बेसिक थिंग, मैं फोटोग्राफर था पहले और है भी, आज भी हूँ। और कैमरा वाज द थिंग, माय मेन गाइड वाज कैमरा, मेरे को ले जाता था। और मतलब जहाँ मैंने सोचा तो वहाँ कैमरा हमेशा कंधे पे है और फुल इक्विपमेंट के साथ चलता था। मतलब करीब 7-8 किलो का वजन हमेशा कंधे पे है ही, ऐसा ही चल के चलो आप। बड़ा लेंस, छोटा लेंस, वाइड लेंस, सब तरह का एक छोटा किट अपना लेके चलते थे। आज भी आदत है, बिना कैमरे से जाते ही नहीं है। तो कैमरा मेरे को वाइल्ड लाइफ की तरफ ले गया पहले। मतलब दैट इज 67 की बात कर रहा हूँ मैं। 1967 में पहली बार मैं कान्हा में गया, जब कान्हा पार्क बना भी नहीं था। 72 में पार्क बने हैं। तब इतना वीरान था और मतलब अनऑर्गेनाइज्ड था तब भी, पर इट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड। और मतलब आज भी वो वैसी है। और तब मैं पहली बार इंग्लैंड से आया था और 67 में पहली बार गया मैं कान्हा में। तो हम 3 रात 4 रात रहे वहाँ पे और रोज टाइगर देखा। और इतना मतलब मेरे को यूरोप में जो मैंने कभी देखा ही नहीं इस तरीके के जानवर, वाइल्ड कैट और बिग कैट एंड ऑल दैट। तो मेरे को सरप्राइज, और वो जो मेरे दिमाग में बैठ गई चीज की, मैंने कहा जंगल देखना है तो फिर इंडिया ही है। मतलब मैं जंगल वहाँ घूमता था, यूरोप में भी घूमा, मेरे जर्मनी वगैरह इधर इंग्लैंड में घूमा, पर वो जंगल मतलब बिना जानवर के जंगल है, ऑलमोस्ट निल। मतलब बहुत रेयरली आपको हिरन दिख जाए या खरगोश दिख जाए तो बहुत योर लकी। बाकी कुछ भी नहीं उस जंगलों में। मतलब तितली मधुमक्खी भी नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं आपको। मतलब छोटी चीजें भी बहुत कम मिलती है वहाँ पे, कि इतना इंसेक्टिसाइड और वो सब करके उन्होंने खत्म कर दिया है वो सब, कि वहाँ पैदा ही नहीं होती वो चीजें। मतलब लिजर्ड है तो रेप्टाइल्स है, तो इस तरीके की चीजें तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है वहाँ पे। ये मैंने जब देखा, और फिर मैं उसके बाद भी 75 तक यूरोप में रहा। पर जब आया तब मैंने शुरू किया मेरा जो इंडियन जीवन जो, और मेरे को पूरा वो था कॉन्फिडेंस कि मैं ये करने की इच्छा है मेरी। और नौकरी वोकरी तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइक 50 ईयर्स आई एम फ्रीलांसर। और अपने जीवन को कैसे चलाना ये ऑर्गेनाइज नहीं करता हूँ, पर चलता है, अभी तक चल रहा है और चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसमें कोई ग्रीडीनेस नहीं, मेरे को कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए उसमें। मैंने मेरी जो इन्वायरमेंटल स्टडी और जो मैंने खुद को अपडेट किया है इन्वायरमेंट में और इसमें, तो मैंने ऐसे जॉब निकाले जो ट्राइबल के साथ में घूम सकूं और जंगल के साथ में देख सकूं, सरकारी गाड़ी आ जाए और मेरे को ले जाए और उनका खाना पीना और उनके रेस्ट हाउस में रहूं और 4-5 दिन 8 दिन मजे करके वापस आता था मैं। तो ऐसे करके मैंने पूरे सरकारी काम भी किए और उससे मेरा जीवन भी चला। पैसा मतलब जो पेट भरने का एक सोर्स है, वो बिल बनते थे और उनके काम भी होते थे, और मेरे को नए नए जंगल और नए नए ट्रैवल के साथ घूमने मिलता था। तो इस तरह से कैमरा वाज द मेन थिंग। कैमरे से मैंने जो उपयोग किया है सरकार के साथ, जो नए चीज उनको दिए मैंने उस टाइम में, करीब करीब मैं मध्य प्रदेश में शायद मेरे मेरे जैसे 2-3 ही होंगे। आज 300 से 500 फोटोग्राफर, 200 तो 300 तो फोटोग्राफर इंदौर में हैं जो बड़े बड़े लेंस के साथ चल रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंस हो गया है 50 साल में, कि वहाँ 5 होंगे तो आज 500 है। मतलब इतना डिफरेंस हो गया विद द बिग इक्विपमेंट, दे आर रेडी टू शूट वाइल्ड लाइफ एंड थिंग्स लाइक दैट। इंदौर वाले हमारे अफ्रीका तक जाके आए हैं, आज इतना प्रोग्रेस है कि अफ्रीकन जंगल भी देख के आए। पर मेरा इंटरेस्ट है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मैंने अपनी फील्ड लिमिटेड रखी और इन्हीं में मैं घूमता रहा खूब। मतलब ये अभी भी एमलेस है, वो इतना बड़ा एरिया है वो,
कि कोई खत्म ही नहीं होता है वो। मैंने ट्राइबल की किताबें की मध्य प्रदेश सरकार के साथ, भारिया जाति का, फिर बैगा जाति के और सहरिया, ये ग्वालियर मुरैना में ये 3 अलग अलग तरह के, हमारे यहाँ 20 ट्राइबल है मध्य प्रदेश में, 20 जाति के अलग अलग ट्राइबल है, 20 डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व है मध्य प्रदेश के। तो 3 तो मैंने किताबें बना दी है, उनके साथ पूरा जीवन मतलब उनका रहन सहन, जीवन, पूरी शैली की किताबें बनी यहाँ पे मध्य प्रदेश के सरकार के साथ। उनको एक अलग ढंग से काम दिया मैंने चैलेंज लेता था अपर सेक्रेटरी और अपने IAS ऑफिसरों से मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ कि साहब ये तो पुराना दर्रा है, नेहरू जमाने का है, ये बता रहे हैं आप खेत खलियान ये वो। मैंने बताया कि आज नहीं ऐसा, मैं फोटोग्राफिकली आपको बताता हूँ जहाँ जाके। तो वो मैंने काम किया। मैंने यूनिसेफ के काम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए किए, जब ये आपका रकोड़ी से हाथ धोते थे और ये वो पूरे कैंपेन किए, 2 बूंद के कैंपेन किए मध्य प्रदेश के यूनिसेफ के साथ। तो उसमें क्या है कि हमेशा घूमने मिलता था मेरे को। मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरे को घूमने का शौक था, तो मैंने मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना घुमा हूँ कि मतलब करीब करीब हर सर्किट हाउस रेस्ट हाउस में पूरा रह के आया हूँ और देखा है। और ट्रैवल के साथ खाना पीना करते थे, घर से कुछ भी नहीं ले जाना, कैमरे के सिवा कुछ काम नहीं था मेरा, कपड़े और कैमरा बस ये बैग में था, और हमेशा वैसे घूम के काम किया है। तो उसका नॉलेज देना वापस यहाँ पे हमारे साथ, तब हमारे बड़े सीनियर मित्र थे MN बुच, जो आज बड़े पर्यावरणविद बने हैं और वो चीफ सेक्रेटरी बने हैं मध्य प्रदेश के। उनकी निर्मला बुच, उनकी वाइफ भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश बनी। तो हायर लेवल के जो ये ऑफिसर थे, उनके साथ में उठक बैठक थी हमारी, उनके साथ एडवाइस करते थे, जो रिपोर्ट में देता था उनके साथ 2-2 घंटे बैठ के रिपोर्ट करते थे। तो उनको एक्चुअल जंगल की कहानियां हम सुनाते थे जो मैंने देखा है, और फोटोग्राफ लेके बताता था कि ऐसे कट रहे जंगल, ऐसा नुकसान हो रहा है, ऐसा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा अच्छा है, बुरा है, ये सब मैं बताता था। जैसे आप ले लो कि कैपिटल समझो आज झाबुआ है, तो झाबुआ की कैपिटल में फॉरेस्ट वाले कैपिटल में ही बैठते हैं, वो जहाँ जंगल है एक्चुअली, वहाँ पे उसको DFO को वहाँ ऑफिस होना चाहिए अंदर में, उनके ऑफिस हमेशा अर्बन में है। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था, इस तरह के ऑब्जेक्शन मैंने किए कि ये लोग जंगल में बैठना चाहिए, पर अभी भी आज भी प्रोसेस है कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, मतलब उनकी फैमिली भी तो अपने जैसी फैमिली है कि उनके बच्चे को उनको देखभाल करने के लिए सिटी के पास रहना पड़ता था। तो ये सब प्रॉब्लम मैंने बड़े बड़े लोगों से, जो सरकार में जो पावरफुल थे तब, उनके साथ भी डिस्कस किया। हमने कहा देखो काम उनका जंगल का है, अब उनकी फैमिली मतलब ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया, फिर उनको पढ़ाई करना, ये करना, वो सब वो है, फिर उनका आना जाना और बस और ये, मतलब वो जैसे एक नॉर्मल लाइफ है, जैसे आप बम्बई में काम कर रहे हैं तो मुंबई में रहना है, और बाकी फैमिली को भी वहीं पे वो करना पड़ता है। ये जो डिफिकल्टीज है मैंने की है, सॉल्व करी है इनकी। जैसे हमने मध्य प्रदेश में एक प्राइज मिलता था, तुलसी सम्मान मिलता है आज भी। तो तुलसी सम्मान आपको भोपाल में सब बुलाते थे मेन आर्टिस्ट को, और वो सम्मान करते थे, और भारत भवन में बड़ा फंक्शन होता था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, व्हाटएवर इज, जो VIP उनके साथ अवार्ड मिलता था। मैंने उसको ब्रेक दिया, मैंने सरकार को कहा कि तुलसी सम्मान में जो जहाँ से आ रहा है आदिवासी, ये ट्राइबल को दिया जाता है, तो ट्राइबल जहाँ से आ रहा है छोटे गांव में, वहां पे उसका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि भोपाल में आके उसके साथ 2-3 आप एक गाड़ी भेज देते हो, 2-3 लोग आते हैं और उसके वाइफ और बच्चे आते हैं, उसमें उसकी तालियां बजती नहीं, उसकी उसकी हुआ नहीं होती वहां पे भोपाल में, उसको कोई जानता नहीं वहाँ भोपाल में। तो हमने कहा ये सम्मान उसके गांव में होना चाहिए, और गांव में होने के बाद उसके गांव के साथ पूरा वो जमावड़ा जो होएगा, उसकी तारीफ होगी, उसकी वह होगी। तो हमने कहा ये सिस्टम को थोड़ा हमने दिया वापस। तो इस तरह के भी ऐसे कई इम्प्रूवमेंट आप जाते आते कर सकते हो। ये जो नॉलेज आपको मिलता है भोपाल में, मतलब हर चीज कैपिटल में क्यों होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। तो कैपिटल से डिसेंट्रलाइज चीज होना चाहिए अपने यहाँ। मैं इंग्लैंड गया तो सेंट्रलाइज है सब, न्यूयॉर्क सेंट्रलाइज्ड है, और जैसे पेरिस है तो पेरिस सेंट्रलाइज्ड है। ये जर्मनी में एक भी ऐसा शहर नहीं कि जो जो पूरा सेंटर को अब्सॉर्ब करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, ऐसे उनके हर शहर को इम्पोर्टेंट दिया उनने। ये डिसेंट्रलाइजेशन है, जर्मनी इज लाइक डिसेंट्रलाइज,
उसको हर जगह इम्पोर्टेंट मिला है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब दूर इम्पोर्टेंट है वहाँ पे सब। मतलब वहाँ कभी बड़े कारखाने हैं तो कहीं इधर माइनिंग है तो कुछ और है तो कुछ और है, ऐसा करके डिसेंट्रलाइज करके उनने पूरी कंट्री को सेटअप किया है। जैसे न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस, ये कंसंट्रेशन हुआ है पूरा। मतलब ये जो सिटी कंट्रीज है, जैसे फ्रांस ले लो, इंग्लैंड ले लो, अमेरिका ले लो, तो ये कंसंट्रेशन वाली सिटीज है। और यहाँ 5-5, 2-2 करोड़ की सिटीज बनी है यहाँ पे। तो हर कोई अट्रैक्शन वहीं पे जाता है। जैसे अपने यहाँ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ये 4 सेंटर बने हैं। उसके सिवा अपन डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे उसको। तो हर जगह आपको, जैसे झाबुआ में भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। झाबुआ की सिटी में वहां पे म्यूजियम बनना चाहिए, उनका उनका म्यूजियम वहां पे बनना चाहिए, भोपाल में नहीं। ये मैं कब से कह रहा हूँ सरकार को कि हर हर ट्राइबल का म्यूजियम वहां पे उनके इलाके में बनना चाहिए। तो ट्रैवल टूरिज्म ये सब बढ़ेगा। और अपन क्या डिसेंट्रलाइज करके सेंट्रलाइज करके भोपाल में हर चीज होती है, जैसे दिल्ली में हर चीज होती है। तो दिल्ली में हर चीज, दिल्ली में क्या करेंगे आप? हम तो ये जाना ही लागू नहीं चाहते दिल्ली तो में। वाटर बॉडीज पे भी होता है, ये लागू तो वेटलैंड्स पे भी होता है कि जो पुराने जमाने में हमारे छोटे छोटे बहुत सारे लेक्स एंड वेटलैंड्स होते थे, उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा थी। बिल्कुल नदी अपने आप अलग बहती थी और उसको हम मतलब इंडिपेंडेंट छोड़ देते थे, और जो पीपल थे दे वर मोर फोकस्ड ऑन द लेक्स एंड वेटलैंड्स। आज हमारा जो पूरा हम देखते हैं कि ज्यादा फोकस हमारा लार्ज वाटर बॉडी पे है। तो आपने इस सिचुएशन में भी सिरपुर को सेव किया, और अभी तो आप दूसरे लेक के साथ भी कनेक्ट हो गया। तो अभी जब आप बातें करते हैं वेटलैंड्स की, तो रिस्पांस कैसा रहता है लोकल अथॉरिटीज का और स्टेट बॉडीज का? रिस्पॉन्स क्योंकि हम पीपल हमारे एंड पास नेचर पावर दोनों का पॉइंट रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। हमारे पास पावर पॉइंट प्रोग्राम है जो बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब उसमें हम 15 मिनट में जो बताते हैं फिल्मिंग में और पावर पॉइंट से, तो बच्चे तो बिल्कुल उठना ही नहीं चाहते उस पे। और वो चिपक जाते हैं, जो और बताओ ऐसा करके वो होता है। वो प्रोग्राम इतना अट्रैक्टिव किया है हमने उसको, तो विद द लाइव कमेंट्री। तो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हम सीधे फोटोग्राफ बताते हैं और बातचीत करते हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। और मतलब वो अट्रैक्शन ही हमारा मेन वो है टारगेट। मतलब फोटोग्राफी इतनी अट्रैक्टिव होना चाहिए कि एकदम भा जाना चाहिए आपको। 2 फोटोग्राफ में तो आप बोलोगे कि बिल्कुल जाना है अपने को वहाँ पे। तो इस तरह की चीज जो होती है, वो एक पकड़ कहते हैं उसको हम, फोटोग्राफी की। या अपने जैसे वर्ड की पकड़ है, तो हमारे इसमें फोटोग्राफी का दम जो हम भरते हैं बच्चों में, तो उठते ही नहीं वो बिल्कुल। 1 घंटा बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हलचल नहीं करेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होते हैं वो। तो उसमें अट्रैक्शन लाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ती है। और मेहनत के लिए मतलब क्या है कि जो हम कह रहे हैं आपको, आर्ट और इस एस्थेटिक सेंस ऑफ द फोटोग्राफी, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा हर आज क्लिक हो रहा है, हर सेकंड में आपका मोबाइल से आप खुद के फोटो निकाल रहे हो, पर अट्रैक्टिव नहीं है ना वो फोटोग्राफ तो टेक्निकली आ जाता है, उस पर प्रिंट आ जाता है स्क्रीन पे। बाकी क्या है, उसको मिटाते जाओ, लेते जाओ, मिटाते जाओ, यही चलता है लाइफ में। मतलब एक भी फोटो ऐसा लगाने लायक नहीं मिलता है लोगों को। तो ये जो कंफ्यूज्ड है आप, मतलब अभी क्या है कि आप आईना में देखो या अपने मोबाइल के फोटो देखो, एक ही चीज हो गई है। इतना इतना फोटो निकाल रहे हैं खुद के लोग कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं है वो कि आपके खुद के फोटो निकालना चाहिए। क्योंकि फोटोग्राफर का तो इथिक्स है बिजनेस में भी कि खुद होना ही नहीं चाहिए वहां पे फोटोग्राफर को। मतलब वो फोटोग्राफ कहलाएंगे आप, क्योंकि वो फोटोग्राफ में माइनस फोटोग्राफर है, मतलब उसने निकाला है ये। इसका मीनिंग भी वही है कि अब मैंने के 10-10 प्राइम मिनिस्टर के फोटो निकाले, मेरा फोटो नहीं है प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट के साथ इंडिया के। तो वो मैं कैमरा देके मेरा फोटो थोड़ी निकालता हूँ कभी। तो ये इथिक्स ऑफ द बिजनेस है हमारा कि फोटोग्राफर का फोटो कभी होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो निकाला है ये फोटो। और आप सेल्फी लेके ये करके वो क्या आप खुद बता रहे हो वहां पे, तो दैट इज मतलब एक रिकॉर्ड है कि आप वहां थे। इससे ज्यादा तो नहीं है ना कुछ, इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ। तो ये ऐसी चलती है। अब जो आपने 1-2 बर्ड की स्टोरी है, तो मैं कहता हूँ 1-2 बर्ड की स्टोरी। जैसे आपका हमारा लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया फ्लाइंग बर्ड है सारस से, समझ लो सारस। तो सारस को आपको पूरी जिंदगी के लिए एक वो मेल मिला होता है उनका यंग एज में। और पूरी जिंदगी वो दोनों ही चलते हैं, वो बदलते नहीं अपना पार्टनर। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है और ये पूरा
मतलब टैगिंग करके पूरा साइंटिफिकली उन्होंने कहा कि जोड़ा पूरा जिंदगी भर साथ में चलता है। मतलब उसमें से कोई मिसहैप हो जाए, कोई निकल जाए, तो वो फिर बड़े मुश्किल से जीता है, या फिर अपना पार्टनर मिले तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है उसकी। ये ऐसी स्टोरी है। उसी तरह की सुरखाब की भी है, जो रेमली शेल्डक है, जो भूटान से आता है यहाँ पे, अपने यहाँ नेपाल भूटान के उधर से हिमालय पार होके आता है, वो भी जोड़ी से आता है, वो भी पूरी जिंदगी भर अपनी जोड़ी रखता है। तो ये एक सीखने की चीज है कि उनमें वैसे अट्रैक्शन नहीं कि जिसको मिल जाए हेलो करो, ये वो नहीं है उनमें, वो पूरी जोड़ी से रहते हैं। फिर आपने जैसे बूचर बर्ड का मेंशन किया है, तो बूचर बर्ड इज लाइक ए आपका क्या नाम उसका, बूचर बर्ड का कहाँ गया, श्राइक। श्राइक जो कीड़े को मारता है और हमेशा वो कांटे के झाड़ पे ही बैठता है, मतलब स्पाइक जिसमें रहते हैं, तो कीड़े को मार के और इमीडिएटली खाता नहीं है, कुछ नहीं करता, अपने कांटे को लगा देता है उसको, अपने कीड़े को। तो जब उसको फिर फुर्सत है, या उसको ही रिमेम्बर्स दैट वेयर ही हैज पुट अप दैट मरा हुआ कीड़ा उसने डाला है, तो वापस आके खाता है वो। मतलब इस तरह की एक उसके पास वो है, सेविंग बैंक है कि कैन उसको कांटे पे लगा के और जा सकता है इधर उधर, तो वो भागता भी नहीं, कुछ नहीं है, और जिंदा रहे जब तक रहे वो कांटे पे लगा रहता है। तो एक उसकी आदत है वो, उसको इसलिए बूचड़ बर्ड कहते हैं कि वो कांटे पे लगा देता है वो। तो ये एक स्टोरी है। फिर ऐसे बर्ड है जो पहले पहले आते हैं, जैसे क्रिस्टेड बंटिंग है, तो सीजन के पहले, बारिश के बाद पहला वो उसका अपीयरेंस दिखेगा आपको, हर सीजन में वो पहले अपीयर दिखेगा, नया बर्ड मतलब वही दिखेगा आपको, क्रिस्टेड बंटिंग। तो वो उसकी निशान है कि नया माइग्रेशन हो रहा है। इसके बाद एक पाइड कुकू है, वो अफ्रीका से आती है, यहाँ पे इंदौर में तक आती है, और वो भी वैसा ही है कि उसको भी शुरू में दिखती है वो हमेशा, मतलब आफ्टर बारिश सीजन, जो सीजन चालू होता है आपका सितंबर अक्टूबर में, तो वो पहले दिखेगी, मतलब सितंबर अक्टूबर में ही दिख जाएगी बराबर, माइग्रेशन बराबर उनका टाइमिंग बिल्कुल सूरज और सन से चल रहा है बिल्कुल, तो एकदम एग्जैक्ट डेट में मिलेगी, ऑलमोस्ट उस हफ्ते में बराबर मिल जाएंगे वो पक्षी वहां पे। तो इनके टाइमिंग्स और मतलब सनसेट टू सनराइज ये चलता जो है, नाइट और नाइट वाले बराबर जाग जाएंगे, दिन वाले बराबर जाग जाएंगे, और नाइट हेरॉन है तो रात को ही शिकार करेगा, दिन में सोता रहता है झाड़ों पे। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन है ये हमने कोई किताब से नहीं पढ़ा, हमने ऑब्जर्व भी किया है, हमारे यहाँ बिल्कुल देखे जाता है ये सब कुछ, कि बिल्कुल नाइट हेरॉन चुपचाप बैठा रहता है दिन में, और रात को भी उसको लेट अर्ली सवेरे देखा है तो शिकार पे है वो, मतलब पानी के पास मिलेगा आपको, नहीं तो चुपचाप बैठता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ऐसी कई ऑब्जर्वेशन है जो हर वर्ड्स के साथ अपन उससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। मतलब जैसे आप ले लो कोई भी बेर खाने वाला कोई भी फलदारी, या तोता ले लो, प्लम हेडेड तोता ले लो, तो वो एक बेर पकड़ के खा रहा है समझ लो, तो वो खत्म होने तक उसको छोड़ता नहीं है, वो पूरा खत्म करता है, और वो बाकी बेर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है। अपन बेर तोड़ने जाएंगे तो पूरे बांस लेके पूरा झाड़ को झड़वा देंगे, इतना अपन तोड़ के, और अपन भले खाए नहीं खाए पर झाड़ को नाश करके जाएंगे अपन। मतलब अपनी एटीट्यूड और बर्ड की एटीट्यूड, ये समझने की बात है यहाँ पे कि उसको जितना चाहिए उतना ही खाता है वो, उतना ही लेता है वहां झाड़ से, बाकी अनडिस्टर्ब रहता है। तो बाकी सब चीज नेचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये बड़ी सीख है अपनी, अपन हमेशा डिस्टर्ब करके जाते हैं, हल्ला गुल्ला करना है अपना, नेचर में क्या मालूम क्या हुआ है उल्टा काम, कि आदमी ऐसा जानवर है कि सबका दुश्मन है वो, हर जानवर का आदमी दुश्मन है, बताओ आप, मतलब मच्छर से ले लो तो टाइगर तक ले लो, आदमी दुश्मन है उसका। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है साहब, कि मतलब ये सोच आपकी और बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं एक्सरसाइज, कि मतलब ये नहीं कह रहा हूँ पर ऑब्जर्वेशन करो ना आप, तो यही दिखेगा कि बराबर है साहब, आप ही आपको हेट करते हैं सब कोई, दूसरे जानवर आपको कोई पसंद नहीं करते हैं, ये एक आपका कंक्लूजन निकलेगा। बहुत बहुत कड़वा सच है सर, कि इंसान को कोई जानवर शायद उतना पसंद नहीं करते होंगे,
पर इंसान को कैसे हम आई थिंक जो आप बोल रहे थे कि ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं तो शायद उससे प्यार हो जाता है। जैसे आपने कैमरा लेके जंगल में बैठ ही गए तो प्यार होना वाजिब है। तो अभी अब जो यंगस्टर्स हैं जो मेरे एज ग्रुप के हैं, हम कहीं ना कहीं डिटैच हो गए हैं नेचर से, इसलिए शायद वो एक एम्पैथी और एसोसिएशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर काम हम एक मशीन के जैसे हम लोग वेटलैंड्स के साथ और नेचर के साथ रिलेट हो पाते हैं। पर चूंकि पीपल एंड नेचर को हम अलग भी नहीं कर सकते, और अगर नेचर कंजर्वेशन करना है तो भी लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि इंसान ही नेचर को बिगाड़ रहा है तो बनाना भी उसको ही पड़ेगा। तो बिल्कुल क्योंकि बाकी आपने जैसे बोला बाकी चिड़िया खाएगी तो उतना ही लेगी जितना उसको खाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए। और जैसे हम लोग खुद भी वेंसडेज फॉर वाटर में अभी हम इतने समय से बात कर रहे हैं, हम अभी तक बायोडाइवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो ये हमारे लिए भी सीख है कि हम बायोडाइवर्सिटी पे ज़्यादा बात करें। एक मैं क्वेश्चंस लूंगी लोगों से, तो ताकि आप उनके जवाब दे पाए। पीपल इफ देयर आर सम क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, मैं उनको पढ़ लूं या तो आई थिंक मैं इनवाइट करूंगी आप डायरेक्ट बात करें भालू सर से। It बिल्कुल। is really very nice to talk to him directly, I think. So anybody would like to interact with him, may please unmute themselves. You are free to unmute and ask your questions. Chat box में सवाल है soil और water का relationship, और तो let people ask you, I think directly, that will be good. मैडम मैं आस्क, Please go ahead, sir. आप भालचंद साहब नमस्कार। नमस्कार। सब मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप इंदौर से हैं। मैं बेसिकली उज्जैन का रहने वाला हूँ। अरे वाह। अच्छा, उज्जैन से है। हाँ हाँ, अभी बेसिकली तो अभी मैं पोस्टेड नोएडा में हूँ। और आज के पहले साहब मुझे चिंता हो रही थी कि 1.5 साल बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मैं क्या करूंगा। तो लेकिन आपसे मिलकर मुझे लगा कि अब मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ये मान लीजिए आप कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सबऑर्डिनेट मिल गया। सर, उज्जैन में मोर देन 50। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। ये रिटायरमेंट के लिए मत छोड़ो आप, ये अभी आप आ जाओ। शुरू कर दो। कब का शुरू कर देना है आपको ये काम, क्योंकि उसमें देखो मतलब आज प्रेसिडेंट अमेरिका का भी गोल्फ खेल के आता है, और गोल्फ में भी उसका दिमाग तो पॉलिटिक्स में चलता है या जहाँ भी चलता है। तो एक साथ आपको 4 काम के विचार करने की शक्ति आपको बढ़ानी है, अपनी शक्ति बढ़ाना है, और 10 काम कर सकते हैं अपन। और वही जो 10 हाथ वाले पिक्चर थे पुराने भगवान के, वो आज एक आदमी कर रहा है ना 20 काम। अपने प्राइम मिनिस्टर देखो 14 घंटे 16 घंटे कर रहे हैं। तो वो आपका कहना अभी सोचना नहीं कि मैं उस बाद में करूंगा, ये सब अभी शुरू कर दो आप। ठीक सर, ठीक है सर। वैसे एक चीज बताऊं, आपने सही कहा। वैसे मैंने उस दिशा में कुछ काम चालू कर दिया। जैसे मेरा जो नेचुरल इंटरेस्ट है इट इज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ तो मैं रहता हूँ फ्लैट में। अब एक्चुअली क्या है, फ्लैट में तो जगह है नहीं पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो है अपने छत पे पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। और पिछले 1 साल से जो है मैं अपने यहाँ पे पौधे लगा करके और उनको बड़ा करके अलग अलग जगह प्लांट किया है मैंने। हालांकि अभी तक ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तो हुआ नहीं, क्योंकि 8-10 पौधे हमने लगाए हैं। और देखिए मैं अभी घर पर ही हूँ और मैं आपको अपनी छत पर ले जा रहा हूँ। 1 मिनट लगे, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे। सर आप छत पे पहुंचे, हम दूसरे क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यू मे आस्क क्वेश्चंस प्लीज। सिमर गो अहेड। और अपना प्लीज बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं, ताकि भालू सर को भी अच्छा लगेगा। बोलिए। सर मैं गोवा से बोल रही हूँ। हाँ, जोर से बोलो सिमर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं गोवा से बोल रही हूँ। विजिबल है? अच्छा, वो छत पे ले ही गए हमको। जी जी विजिबल है सिमर, प्लीज कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चन। अच्छा तो सर ये पूछना था कि जैसे लेक में जो वाटर हाइसिंथ होती हैं जो बहुत डबल होके बढ़ जाती हैं, उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है टू प्रिवेंट इट? एंड अगर वो बढ़ रहा है तो उस मटेरियल का क्या किया जाए?
नहीं, इसका हल तो यही है कि कंटिन्यूअसली उसको निकालना पड़ेगा। मतलब जैसे अपन रोज नहाते धोते बाल कटाते हैं, दाढ़ी करते हैं लोग, सब कुछ होता है, जैसा प्रोसेस है लाइफ का, वैसा ही उसका प्रोसेस है कि वो आएगी। पर उसको रोकने के लिए एक ही है कि तालाब में पोल्यूटेड कहीं से लीकेज है या सीवेज का लीकेज है या कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला काम है। जैसे कॉलोनी बसी है, घर बसे है, तो वहाँ पे टॉयलेट सिस्टम बराबर नहीं है उनका, उनके शौचालय वगैरह नहीं होंगे, तो फिर वो पोल्यूटेड पानी से तो डबल हो जाएगी हाइसिंथ। और ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया है। अभी हम प्रेशर लगा ही रहे हैं कि उसको, तो अब उनने 40 करोड़ का, सिरपुर पे की बात कर रहा हूँ मैं, 40 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट लाया है जो एसटीपी प्लांट बनेगा वहां पे। अब क्योंकि कॉलोनी तो वहां बस चुकी है, उसको वैध भी कर चुके हैं वो, दे हैव गिवन द ग्रीन सिग्नल टू वैध कर दिया उसको। अब वो टैक्स लेना चालू कर दिया है। अब टैक्स लेने के बाद गंदीवाड़ा है वहां पे। अब हमने जो प्रेशर लगाया तो उसको एसटीपी प्लांट का 40 करोड़ का प्लांट नगर निगम को लगाना है वहां पे, क्योंकि नहीं तो हाइसिंथ हमारी जाएगी नहीं। तो इसका इलाज अब 1 साल हमको फिर रुकना पड़ेगा। कि अब 1 साल बोले वो कि अगले साल हम तैयार हो जाएगा और अगले साल पोल्यूशन बिल्कुल तालाब में नहीं के बराबर रहेगा। तो लेट अस सी। एक दिन एसटीपी काम करना बंद कर देती है तो फिर वो सेम प्रॉब्लम आ जाएगी ना? नहीं, एसटीपी तो मतलब वो तो टेक्निकल है, इंजीनियरिंग का है प्रोसेस, वो तो उनको कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा। 40 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, कोई कम थोड़ी है, वो अमाउंट भी तो बड़ी है। और उसको रनिंग में लाना पड़ेगा कंटिन्यूस। उसका वो फिर प्रोसेस है कि उसको कैसी सफाई करना, वो मेरा काम तो है नहीं, वो नगर निगम जाने और वो क्लीनिंग वाले जाने। सर इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग को आई थिंक एनवायरमेंटलिस्ट आप जैसे और हम लोग सबको ये बताना पड़ेगा लोगों की कि वाटर हायासिंथ इज नॉट एन एनिमी। वाटर हायासिंथ से बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं इंक्लूडिंग लेदर। तो अगर जितना पैसा हम एसटीपी में लगाते हैं, एक्चुअली अगर हम रोज वाटर हायासिंथ हार्वेस्ट करें तो इट इज चीपर and it can give us produce. But by saying that, I am not saying that we have to let the lake get polluted. ये कह रहा हूँ मैं आपको, Water hyacinth is आ रहा है ना, वही तो enemy. No, also like I've been studying. ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उधर जाके। बट मैं आपको बता दूं, सिरपुर में जो सर बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी कॉलोनी कट गई, सर ने बहुत साल उसके लिए फाइट किया कि वहां पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और वो वेटलैंड के लिए रहे। ग्राउंड में फाइट किया उन्होंने लोगों के साथ, लोकल अथॉरिटी के साथ। बट इवेंचुअली वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वहाँ डेवलपमेंट हो गया। अब वो फाइट कर रहे हैं वहां पे वेस्ट वाटर एटलीस्ट तालाब में ना डाले। सो यू कैन इमेजिन कि 30 years ago ही वाज ऑलरेडी एनविसाजिंग कि यहाँ प्लॉट कटेगा तो लेक पॉल्यूट होगा। सिमिलरली उन्होंने विलेजर्स को भी एक्चुअली काफी सारा जा के घर घर समझाया कि वहां पे पेस्टिसाइड नहीं डालना है फार्मिंग में। तो जो अपस्ट्रीम ऑफ सिरपुर है, वहां पे सारे विलेजर्स के साथ सर ने घर घर जा के पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग के लिए उन्होंने अवेयरनेस किया है। तो ये सारी चीजें हम जब जैसे ग्रेट्स लोग के साथ जब बैठते हैं ना, रहते हैं, उनको देखते हैं, तब पता चलता है कि उनके पीछे उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया। वाटर हायासिंथ हाथ से उन्होंने लोगों के साथ लिटरली रोज हफ्ते भर हर हफ्ते निकाला है, सालों साल सिरपुर में से। तो एवरी सिटी वाटर हायासिंथ को निकाला जा सकता है। आई थिंक हम अपना पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इट इज रियली नॉट अ प्रॉब्लम थिंग। अब वैसा ही जैसे गाजर घास है और लंटाना है, ये 2 चीज और है, जमीन पे है ये जमीन से मतलब घास जैसी है ये। तो इसको भी वही है कि क्लीनिंग करना ही है कंटिन्यूसली। मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, जब तक वो आपको नहीं दिखे तब तक आप करते रहो। और यही जीवन है, समझ लो, एक पार्ट ऑफ द लेक है वो जीवन। लेक को जिंदा रखना है तो ये सब हटाना पड़ेगा और अच्छी चीजें लाना है वहां पे। हम लोग भी तो रोज खाना खा रहे हैं, रोज या तो बिल्कुल और बदल के खाते हैं अपन खाना। तो वो एक चीज नहीं खाते अपन रोज, कुछ ना कुछ उसका डिफरेंस रहता है, तो वो भी वैसा ही चलता है। तो इट पार्ट ऑफ लाइफ है वो, क्योंकि झाड़ बढ़ेगा, बीजा लगाने से बढ़ेगा और फल देने तक आपको संभालना है उसको। फल देने के बाद भी उसको संभालना तो है ही, संभालना तो आपको ऑल टाइम है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, तो छोड़ दिया तो वो तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा मतलब अपने ही आसपास के लोग नष्ट करेंगे उसको, क्योंकि ग्रीडीनेस आ जाता है उसमें कि और कोई नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगा इस फल को।
तो पूरा मेरा ही कब्जा है ये, ऐसा करके जो होता है ना, तो ये जानवर में नहीं है। जानवर अपना काम करके चला जाता है, वहाँ पे फल खा के चला जाता है, फूल खा के जो भी है रस उसका लेके चला जाता है। तो ये जो सेल्फिशनेस एक रखा है आपने, ग्रीडीनेस जो है ना, वो हावी है अपने पे। वो आपने यदि छोड़ दिया, क्योंकि लेक इज इंदौर के 40 लाख लोगों का है ये, तो आज 33 से 40 लाख लोग इंदौर में है, और उसमें ये अर्बन लेक है जिसमें 170 वेराइटीज ऑफ पक्षी यहाँ पे आते हैं, और जो माइग्रेट होते हैं पूरे अरब सागर, हिमालय उस पार और साउथ से सब दूर से। तो सेंटर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है कि चारों तरफ से पक्षी आते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। तो रैकटेल वगैरह साउथ से आ रही है यहाँ पे। तो खूब सारी चीजें ऐसी है कि मतलब कहाँ कहाँ से क्या है, लोकेशन है, और एक सेंटर बनता है ये ठंड के लिए। तो ये कंटिन्यूस होने के लिए आपको मेंटेनेंस तो लगेगा, ऐसा मतलब लाइक कान्हा पार क्या है उस तरह का जंगल नहीं की है, उसमें भी फॉरेस्ट कितना खर्चा है उसका, फॉरेस्ट मतलब करोड़ों में चल रहा है, और इनकम सोर्स उन्होंने बनाया है कि टूरिस्ट आए तो उससे इनकम हुआ है, तो वो इक्वल बैलेंस करते हैं फिर वहाँ पे। बाकी सरकार डालते रहे ऐसा तो है ही नहीं कहीं प्रोसेस। वो तो आपको लेना और देना इसको बराबर इक्वल करेंगे तो ही वो प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल मतलब एक वायबल है वो चीज, ये आपको इक्वल करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, मेक इवन आपको करना ही पड़ेगा। तो मेक इवन करने के लिए अब इसमें एजेंसियां लगी है, और एजेंसी के साथ जो जिसको समझता ही नहीं है वो धान ली वहां पे, समझ के करे तो बिल्कुल बढ़िया होगा काम, पर नहीं के बराबर समझिए अब करे क्या करें, क्योंकि इंजीनियरिंग अगेंस्ट एनवायरमेंट चल रहा है। मतलब हर जगह दो डिवीजन है, एक इंजीनियरिंग है जो नगर निगम और नगर पालिका करती है छोटे गांव में, और पंचायत तक करती है, उनको रंग रोगन ये वो इंजीनियरिंग सरिया सीमेंट चाहिए। और एनवायरमेंट वाले अपने जैसे लोग हैं, उनको पानी भले ही दिखने में गंदा है पर गंदा नहीं है वो, क्योंकि आज हमारे यहाँ नर्मदा का पानी आ रहा है, वी आर नॉट टेकिंग लेक्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट, वो तो रिजर्व पड़ा है हमारा इंदौर में, जो तालाब है आज सिरपुर या दूसरे तालाब चंदसागर, ये रिजर्व पड़े हैं, क्योंकि पानी तो हमारा 100 किलोमीटर से आ रहा है, तो उसका पैसा लोगों से चार्ज भी कर रहे हैं, तो वो तो प्रॉफिटेबल उनका प्रोजेक्ट चल रहा है बढ़िया। और ये अब ब्यूटिफिकेशन है, और इसको एक एनवायरमेंटल वॉकवे चाहिए अपने को सिटी में, क्योंकि अर्बनाइज्ड है पूरा ये, घर टू घर बिल्कुल दीवार से लगे हुए हैं, तो उसको कहाँ जाओगे आप, नहीं तो आपके पास फ्लैट है तो उसमें जगह ही नहीं आपको घूमने फिरने की, तो ये जगह बनती है ऐसी, और दीज आर द सिटीज लंग्स कहलाते हैं हम इसको, क्योंकि एक बिल्कुल खुले आसमान के साथ आप एक मतलब 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन को देखना, वो भी एक आश्चर्य ही है अर्बन में। तो उस तरीके जैसे सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में है, हाइड पार्क लंदन में है, ये बड़े बड़े पार्क मतलब 100 एकड़ से ज्यादा इनकी वो है लेंथ ब्लेड, बहुत लंबा, 5 किलोमीटर चले जाओ हाइड पार्क में तभी खत्म ही नहीं होता है, इस तरह का पार्क तो न्यूयॉर्क भी ऐसा ही है। तो ये पार्क छोड़ी है, और उसके लिए वो तो फाइट चलती है, वहां भी फाइट चल रही है, उनको अर्बनाइज जमीन चाहिए, और जो सिटी के एनवायरनमेंट वाले वो फाइट करते हैं उसके साथ, तो वो सब दूर है ये चीज। कल ही एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया, और आई थिंक मेनी पीपल हैव रेड, क्योंकि अभी बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आ गया है, और उसके लिए हमको सबको सजेशंस मांगा गया है कि दिल्ली के वेटलैंड्स हार्डली कवर 0.3 और 4, विशाल यू मे करेक्ट मी, 0.3 और 4% ऑफ लैंड एरिया ऑफ दिल्ली, बट एक्चुअली दे हाउस 40% ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन। तो अब आप देखिए कि वाटर एरिया इतना कम है पर बर्ड पॉपुलेशन मेजॉरिटी वाटर के पास में ही मिलेगी। सो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, विभू, सो go ahead please. Thank you. I think there is a question from Kaustuba. Yes, so we can take that and then sure. Kaustuba, you may please ask your question, because we are having it a very relaxed session, so please ask your question directly. I have the question in front of me. Yeah, go ahead Kaustuba. Good evening sir. आपने ये आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी बात सुन के। आई एम स्टूडेंट फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। सर, आपने ये मूवमेंट
बहुत लंबी टाइम तक किया है, like for so many years. How did you maintain the momentum? How did you ensure that there was community engagement and government? How did you get the eye of the government onto this movement? How were you? देखो, इसमें कोई वो अट्रैक्शन ऑफ मनी इज नॉट देयर। मतलब मेरे को कोई कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं है। मेरा पेट्रोल डाल के मैं कार से जाता हूँ या स्कूटर से जाता हूँ, वो मेरा ही सब खर्चा है। मेरे को कंटिन्यूअसली उसको रखने के लिए एक अपने आप में इधर उधर से हाथ पांव पटकना पड़ते हैं, दूसरे जगह क्या हो रहा है, इस जगह क्या हो रहा है, उस जगह क्या हो रहा है, ऐसा करके, और अपने यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसका एक अट्रैक्शन रहता है। मतलब ये जैसे टुमारो इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू, ये हमेशा सोने के पहले मैं सोचता हूँ कि कल क्या विशेष है अपना। तो हमेशा हर दिन को आप इम्पोर्टेंट बनाओ उसको। ये कह रहा हूँ मैं आपको कि इट इज नॉट ए वंस ए वाइल। मैं हर तीसरे चौथे रोज में वहां जाता हूँ। कोरोना में भी गए और जा ही रहे, अभी फिर कल परसों का राउंड रहेगा, तो हर तीसरे चौथे रोज में हमारा राउंड रहता ही है। रोज जाने की जरूरत नहीं है वैसी। और वहाँ पे जो हमारे आदमी, उनसे हम रिपोर्ट ले ले, क्योंकि विशेष कुछ होता है तो कॉल करते हैं वो। तो ऐसा अरेंजमेंट सालों से चल रहा है ये। और अट्रैक्शन इसलिए है कि उसमें मतलब जीरो से किया है जो, तो आज जो दिख रहा है और उसको आगे करना है। अभी सपना पूरा नहीं हुआ है, तो उसको सपने को कंटिन्यू करने के लिए अट्रैक्शन पूरा रखा हुआ है पूरा, कि इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो। जैसे अपन थाली में एक एक चीज को अपन खाते जाते हैं, और अच्छी चीज को शायद आखिरी भी खाते हैं, ऐसा भी है। या स्वीट डिश आती है तो उसका एक अट्रैक्शन रहता है। तो ऐसा करके आपको रोज के लाइफ में चलना है उसको। मतलब ऐसा कुछ टारगेट नहीं है फिर भी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ नहीं है। सरकार के साथ चलना है, और अपडेट रिपोर्ट हम खुद रखते हैं उसकी। मतलब ऐसा रिपोर्ट ले नहीं रहे किससे, हम खुद जाके लेते हैं। तो उसमें एक अपना एक पर्सनल प्रेजेंस है, कोई ना कोई उसमें इंक्वायरी करता है। अब जैसे आप जुड़े हुए लोग अपने ऑनलाइन पे जैसे आज जुड़े हैं, ऐसे जुड़ते रहते हैं और इंक्वायरी करते रहते हैं, क्योंकि नए नए लोग भी तो आ रहे हैं उसमें। बहुत कम आते हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ज्यादा आए हमारे पास। मतलब गिने गिने लोग जुड़ते हमसे, जुड़ते तो नहीं के बराबर है। तो एक वो भी कमी कह रहा हूँ मैं, कि सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कैसे भी जुड़ सकते हो हमसे, और अक्रॉस द थिंग जहाँ भी अपन है वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। और अपन, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये बताएंगे तो भी उससे बातचीत होगी। बातचीत के बिना कुछ नहीं होगा। मतलब आप अकेले में 30 मार का तो बनेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कोई ना कोई गुरु का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु शिष्य जो आज भी परंपरा मिट्टी क्यों नहीं है, इसलिए मिट्टी नहीं है कि वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल है गुरु का वहाँ पे, और उसको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि पाँव पड़ो उसको, ये करो वो करो, दक्षिणा दो, कुछ नहीं है। पर उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको एक ऊपर का अपर हैंड चाहिए हमेशा, जो जो एक्सपीरियंस लोग ही दे सकते हैं उसको। मतलब आज हमारा जूनियर तो मुश्किल ही है। आज 20 साल के लड़के को ब्रिलियंट आइडिया होगी मान लिया, तो उसको आइडिया ले सकते हैं और अपन ग्रुप में ला सकते हैं उसको। मतलब इस तरह से वो एंट्री ले सकता है, फास्ट एंट्री हो जाएगी उसकी, और वो बहुत स्मार्ट निकल सकता है। ही कुड बी नोबेल प्राइज विनर। मतलब ऐसा उसको एनकरेज तो करना ही पड़ेगा आपको शुरू से। पर आप सोचते होगे कि मैं अकेला कर लूंगा और मेरे को जरूरत नहीं किसकी, ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। आपको, क्योंकि आप समाज में रह रहे, कम्युनिटी में रह रहे, उसके साथ आपको चलना है। और आपके आसपास, मतलब आपका पहले घर, पहले ड्राइंग रूम, फिर घर, ये फिर गली आई, गली के मोहल्ला, मोहल्ले से और बड़ा एरिया सिटी आई, सिटी से फिर स्टेट आया, स्टेट से इंडिया आया, और इंडिया से दुनिया। तो दुनिया थी छोड़ो, अपन इंडिया की बात करो तो भी इंडिया भी बहुत बड़ा है। तो हम तो पूरे सिटी से चल रहे हैं। अभी ये जो बातचीत चल रही है अपन सिटी से कर रहे हैं। आप अपनी सिटी में करो ये काम, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए इंदौर ही होना है, उसके लिए अहमदाबाद नहीं होना है, और उसके लिए फलाना होना है। कहीं पे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कहीं पे भी। और इट इज ए वन मैन जो हमने करके दिखाया है। दिखाया मतलब क्या, दिखाने के लिए नहीं किया है मैंने खुद के लिए किया कि चलो अपन करते हैं। अब जो भी है अपने साथ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आया तो अपन, मेरी आइडिया जो है वो तो पक्की है ना दिमाग में। मैंने जो लेके चला हूँ कि यार इसको गंदी वाड़ा, इसको हटाना कैसे। तो ये एक है। तो झाड़ू ली मोदी जी ने,
अपन ने भी शुरुआत की वैसे कि झाड़ू से शुरुआत करो, अपना एक 10 फुट का भी एरिया साफ करो ना अपन, तो अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? 10 फुट हर कोई करेगा तो लाइक दैट होता है, मतलब किलोमीटर में हो जाएगा वो। तो ये छोटा सा ड्रॉप है, मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है तालाब में, तो एक उदाहरण में देता हूँ कि आप डाइनिंग पे, आपके हर डाइनिंग पे, हर टेबल पे और हर घर में सीताफल खाते हो, पपीता खाते हो, आम जाम, जितने भी फल में बीजे है, वो हम बीजे फेंकते नहीं है, कभी डस्टबिन में नहीं जाती मेरे बीजे, हम उसको सुखा के पुड़िया बांध के रखते हैं। जब मैं तालाब पे जाता हूँ वहां डाल देता हूँ, जहाँ जंगल में जाता हूँ वहां फेंक देता हूँ उसको। मेरे बैग में 2-4 पुड़िया रहती है, तो उसको बीजे को वहां फेंको आप, जहाँ उसका पॉसिबिलिटी कि वो जनरेट हुए वहां पे वापस। तो जैसे सीताफल है हमारा, मांडू, मांडू आपने फेमस जगह है मध्य प्रदेश में, धार मांडू, तो उसमें सीताफल इतना जंगलों में इतना होता है कि वो बाजार में बिकने आता है इंदौर, और फेमस वहाँ का सीताफल है। तो वो अपने आप हुआ, कोई झाड़ नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं है, वो बीजा गिरता है, फल आता है, बीजा गिरता है, सब चल रहा है प्रोसेस सालों से, और मुगल टाइम से चल रहा है ये प्रोसेस। बताओ 400 साल हो गए हम सीताफल खा रहे हैं हम मांडू के। तो ये प्रोसेस जो है अपन टेबल पे खा रहे, अपन और कहीं डाल दो उसको डस्टबिन के बजाय, वो क्रश हो जाएंगे या जहाँ भी गलत जगह जाएंगे। तो हर बीजा को जनरेट करना है, मतलब आज लोगों को यही नहीं पता है कि आम की गुठली का झाड़ आपको फिर वापस आम देगा, ये उनको आश्चर्य लग रहा है। ऐसे भी जवान लोग हैं आज कि कॉलेज के लोगों को पता नहीं कि आम की गुठली लगाने से झाड़ हो जाता है। ये भी सरप्राइज है, हम बात करते तो होता है ऐसा कि 2-4 लोग ऐसे लिखते हैं कि हमको पता ही नहीं सब ऐसा होता है कि आम का झाड़। मैंने कहा बाप रे, तो अब अपन कैसे पीछे जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे? तो ये क्यूरियोसिटी, आपकी मेंटली क्यूरियोसिटी को खूब बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये नॉलेज आप खुद ले सकते हैं रोज के जीवन से। मतलब आप एक छोटा सा सीताफल खाओ, उसका बीजा अपने गमले में डाल दो, 8 एक दिन में उसका छोटा सा शूट होएगा, वहां पे स्प्राउटिंग होगा वहाँ, और छोटी सी, मतलब आप राई डाल दो तो उसमें राई का झाड़ आ जाएगा, मेथी दाना डाल दो तो मेथी हो जाएगी, आपका जो आलू है तो उसमें स्प्राउटिंग हो जाएगा। जो करना है आपको जमीन में तो लगाओ उसको, तो शुरू हो जाएगी ये चीज, और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज को। और ऑब्जर्व करने से ही तो आपको लर्निंग प्रोसेस है, वो ऑब्जर्व करना इज अ लर्निंग प्रोसेस। ऑब्जर्व करना मतलब जैसे गुरु को आप अच्छे ध्यान से देखो और उसका फॉलोअप करो और नकल करो पूरी गुरु की, तो भी आप सुधर जाएंगे। हम ये कहते हैं उसमें नकल करने में, गुरु की नकल करने में कोई नीचापन नहीं है, कुछ नहीं है। आप आराम से कर सकते हो और गुरु के पाँव भी पकड़ सकते हो और उसको सेवा भी कर सकते हो और उससे सवा शेर बन सकते हो आप, मतलब उनके ऊपर भी जा सकते हो। तो गुरु हमेशा खुश रहेंगे कि वो मेरा चला है, ये चीज है उसमें। तो गुरु शिष्य में उसको अप्रिशिएट किया है हमेशा, उसको डिस्कार्ड या उसमें जेलसी कभी नहीं आएगी। गुरु शिष्य में जेलसी का कोई रोल नहीं है वहाँ पे कि इसको नहीं ऊपर आने देना, ऐसा गुरु कभी सोचेगा नहीं। ये इस तरह की चीजें है ये चीज, और ये अब बच्चों को बताई नहीं जा रही है, या कम्युनिकेशन गैप है, व्हाटएवर इट इज, ये जो गैप चल रहा है अभी, क्योंकि कम्युनिकेशन टीचर और बच्चा, माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं है। बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब 6 साल के बाद बच्चा करीब करीब माँ बाप से टूट के और एक इंडिपेंडेंट लाइफ चलता है। उसका टीचर और वो, इसके सिवा और कोई नहीं जानता उसको, ज्यादा माँ बाप भी नहीं जानते करे क्या। वो जो जिद करेगा तो उसको पैसे देके पिज्जा खिला देंगे, जो करना कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है उसका रोल, कुछ नहीं है घर में। 15 साल 20 साल तक चलता है ये प्रोसेस, तब तक वो 20 साल का हो जा रहा है तो उसको समझ रहा है कि बाप रे 12वीं पास कर ली, अब क्या करूं, क्वेश्चन मार्क आ गए, सब कंफ्यूज लाइफ चालू हो गया आपका, कंफ्यूज लाइफ। आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं आप, आपको रुचि नहीं लिया आपने झाड़ पेड़ लगाने में, सीखने में, संगीत में, खेलने में, किसी में भी रुचि नहीं है। क्या करना है, क्या करना है, क्या मालूम किताब लेके बैठे, क्या मालूम घूम रहे इधर उधर टोली में घूम रहे। वो टाइम जो चला गया वो चला गया, वापस तो आने का नहीं है। तो उस टाइम में है ये चीज। मैंने 6ठी 7वीं 8वीं में सिरपुर देखा है, मेरे क्लास के इसमें, मतलब आज 50-60 साल हो गए समझ लो कि मैंने तब देखा है वो। आज ऐसे इंदौर में ऐसे जवान भी है कि जिन्हें सिरपुर ही नहीं देखा है। अभी की बात कह रहे हैं, जैसे ये पेंशन वाले कह रहे थे अभी मेरे को महाशय कि मैं पेंशन के इसमें ये करूंगा वो करूंगा। तो मेरे यहाँ, हमारे यहाँ एक रिटायर्ड ग्रुप आया SBI
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड लोग आए, करीब 50 लोग आए। वो कुछ की वाइफ भी थी उनके साथ, करीब 70-80 लोग आए। वो उनके लिए हमने राउंड लिया था, सिरपुर राउंड। तो वो बोले कि मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग पहली बार आए। तो 5-7 लोगों ने ही देखा था, बाकी तो सब पहली बार ही आए समझ लो। तो आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज इंदौर में पैदा होके भी सिरपुर नहीं देखा, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था वो। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज आपको जानना है, पर यार बड़ी बड़ी चीजें तो जानना ही पड़ेगी आपको सिटी की, जो बड़े बड़े लैंडमार्क्स है। या जैसे हमारे इंदौर में राजवाड़ा है, या आपका कहीं का भी अहमदाबाद गेट का जो मुगल गेट है, या जो एरिया है जो खास है, वो NID है जैसे अहमदाबाद में, तो उसको कहाँ है वो सिचुएशन जानना चाहिए। एक बड़ी इंस्टीट्यूट है इंडिया की, वो जानना चाहिए आपको। तो इस बारे में एक इंफॉर्मेशन चाहिए। वाटर फ्रंट आपको अहमदाबाद में शानदार है तो वो जानना चाहिए आपको। पता नहीं नहीं गए हम, कभी देखा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप होलकर की सिटी है इंदौर, उसमें लाल बाग है, मानिक बाग पैलेस है, ऐसे पैलेसेस पड़े हैं यहाँ पे। उनको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे वो रहते थे, यहाँ पे उनका राज चलता था, यहाँ से वो राजवाड़ा उनका ऑफिस था। ये सब जानकारी जरूरी है, क्योंकि आप जब न्यूयॉर्क या लंदन चले जाएंगे तो वहाँ पूछेंगे कि आप कहाँ से आए, तो इंदौर से आए बोले। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट द होलकर्स, वो पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्योंकि उनको जानकारी है और आपको नहीं है, तो आप तो फेल हो जाओगे वहाँ पे, यू विल बी फेल्ड देयर। क्योंकि आपको आपकी सिटी की जानकारी बहुत जरूरी है। जहाँ पे आप पैदाइश है, आपका प्रशिक्षण हुआ है, शिक्षा हुई है, वो जानना बहुत जरूरी है। भले आप बम्बई में पैदा हुए और इंदौर में पढ़े, पर इंदौर में पढ़े फिर इंदौर की जानकारी चाहिए आपको। बम्बई की तो चाहिए ही, पर इंदौर की भी चाहिए आपको। जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ पे आपको पूरी जानकारी चाहिए। तो वेरी गुड पॉइंट मेड। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, और आई थिंक एक जो क्यूरियोसिटी होना, जैसे कि सर ने भी बताया, 6 हर चीज का क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग। मतलब वहां से आपको क्यों कर रहे हैं आप, हर चीज पे आप सवाल करो आपको खुद को, कि पानी क्यों पी रहे हैं आप, अरे ऊपर क्यों देख रहे हैं, नीचे क्यों देख रहे हैं, पानी के सामने अच्छा क्यों लगता है, सूरज का डूबता हुआ क्यों अच्छा दिखता है वो सीन। ये चीज हर चीज पूछो आप, यार ये अच्छा क्यों आता है मेरे को, हर चीज रोज अट्रैक्ट क्यों करता है सूरज डूबते टाइम में, मजा आता है, 2 मिनट में खड़ा रहता हूँ तो मजा आता है देखते हुए वो सिनारियो। ये ऐसी चीज को आप घड़ी घड़ी देखो, एक बार नहीं, खूब देखो इसको, खूब देखो। मतलब आप कौवा है, कौवा इधे गंदा एक पक्षी है, ये नहीं है उसमें, उसका काउंट है, वो काउंट करता है। कबूतर भी, उसको भी एक अटकलियां चलती रहती उनकी, उनका कुछ न कुछ नई चीज दिखेगी आपको, ऑब्जर्व करते रहो नो। तो ये मजेदार चीज है। जंगल में बंदर है तो बंदर के अटकलियां देखो आप, कितनी मजेदार चीज है कि आप नहीं कर सकते कभी भी, वो इस तरीके की चलती रहती है वो कुछ भी। तो वो जो अप्रिसिएशन है, अप्रिसिएट करने की एक कला है नो। किसका पेंटिंग, अरे ये तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। मतलब आज पिकासो सामने देख रहे हो और आप बोलोगे कि यार इसमें क्या किया है, क्या मालूम क्या किया है यार, अपने को तो समझ में नहीं आ रहा है। पर छोड़ नहीं सकते आप उसको, गहराई में जाओ, उसको गहराई में जाना पड़ेगा। तो छोड़ के नहीं होगा वो चीज को, और उसको जानकारी लेके छोड़ दो, जानकारी लो फिर छोड़ दो। ठीक है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है भैया, तो आपको क्या पसंद है वो देखो फिर। तो इमीडिएटली क्यूरियोसिटी है कि आपको ये पसंद नहीं तो ये है क्या फिर, तो आपको खुद नहीं पूछना है वो। मतलब इस तरह का कंटिन्यूटी है वो, और कंटिन्यूटी से हम जा रहे हैं सिर्फ। मैं कहूँ परसों जाऊंगा, 4 दिन बाद जाऊंगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ टारगेट रखा है मैंने कि यार वो किया था अपन ने, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अपना सेंटर का क्या हुआ, आगे बढ़ा, कितनी गुंडागर्दी हो रही है, कितनी गड़बड़ हो रही है, सब देख के आ जाते हैं, रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। तो ठीक है, अपने को अपडेट है आज। और ये अपडेट रखना भी एक लाइफ का वो है, पार्ट है कि आपको अपडेट खुद को रखना। आईने में देखो, और हम तो, मैं आईने में बहुत कम देखता हूँ, देखना भी नहीं है, वो गाली देता हूँ मेरे को खुद को। मैं बताओ आप कि नहीं अभी अच्छा नहीं है, आप बेकार आदमी हो, ये वो खुद को बड़ा ईमानदारी से कि अभी बहुत करना है, बहुत करना है, यही चलता है। आईने में देखो, 2 मिनट के लिए देखो, खुद को चैलेंज दो, खुद को चैलेंज दो। ये कह रहा हूँ मैं आपको, हाउ टू डू दिस, ये आप करके देखो। देखो ये मतलब उसमें क्या देखना है अपने को,
अपनी सूरत अपने को पता है, उसमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो तो ठीक है अपनी जगह है कि ये लगाने से ये ऐसा दिख जाएगा, ऐसा लगाने से टोपी पहनने से ऐसा हो जाएगा, ये ठीक है। पर उसको अंदर से ये सोचना है कि यार आपने मजेदार चीज नहीं है, आप मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, ये चीज होना चाहिए अंदर से कि यार इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये सोच चाहिए आपकी कि क्या करूं मैं वो तो और स्मार्ट बनूंगा उससे, करने से दिखने से कुछ नहीं है। दिखना तो आपको मिल गई सूरत, वो मिल गई समझ में, बस इससे आप कुछ नहीं कर सकते उसको, और वो यूनिवर्सल है, वो उसको आप उसके पीछे थोड़ी भागेंगे, गोरा बनो काला बनो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो है वो मतलब अट्रैक्शन से है ही नहीं चीज, आपकी पर्सनैलिटी उससे है नहीं, सूरत से। पर्सनैलिटी तो वो है जैसे बदसूरत भी नोबेल प्राइज मार गए भैया, यही तो है अब। उनको कोई उसका वो था ही नहीं। ये ऐसी कई चीजें बातें हैं, तो ये बात करना, डायलॉग आपस में करना भी एक हेल्दी साइन है, ये कह रहा हूं मैं आपको। मतलब ये आपस में बातचीत करो, जो नहीं कर सकते बातचीत वो भी आप बातचीत में लाओ टॉपिक्स, यू नो, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार तुम क्या सोच रहे हो, ये ऐसा एक्सचेंज होना चाहिए कंटिन्यूअस। ये मेरा मैसेज, और क्या आप लोगों को। आई थिंक टिस की बच्ची है शायद कौस्तुभा, कलेक्टिव एक्शन के लिटरेचर से लेके इंडिविजुअल एक्शन टू कम्युनिकेशन एज द की। सो मे बी हम एक दो सवाल और लेंगे। विशाल, आई सॉ योर हैंड रेज्ड, एंड विभू, यू बीइंग फ्रॉम द होस्ट साइड, आई विल टेक यू एट द लास्ट. Vishal, go ahead. I hope you enjoyed because I saw you making notes of. No, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा था. So actually, I am also a birder. And so in fact, my interest in wetlands also started because of my interest in birding. But that is the main thing. So it was very inspiring to listen to you. And आप एज में मुझसे बहुत सीनियर लगते हैं, पर शायद आपका एनर्जी और स्टेमिना मुझसे कहीं ज़्यादा ही है. I think you have more energy and stamina than I do. तो एक तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे अभी हम बात करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू द इंटरनेट, मोबाइल, और एंड आई वाज थिंकिंग कि मे बी वन वे टू जस्ट हैव दिस स्ट्रॉन्गर लव for birding, for nature, and then to develop a reverence for wetlands is to have like birding trips in schools. अगर छोटे बच्चों को we take them for birding trips to wetlands, and then they develop this interest and love for birds, then they will grow up with some kind of reverence for wetlands. They will think twice before littering, कूड़ा करने से पहले, या आगे जाके वो प्रोफेशनल्स बनेंगे, कोई अर्बन प्लानर बनेगा, कोई सिविल सर्वेंट बनेगा, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको कैसे बचाना है. एक तो ये दूसरी बात थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि आई रेड दैट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ वेटलैंड्स हेल्थ इज द डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स. तो अगर जैसे मतलब जो मुझे समझ में आया वो ये कि अगर वहाँ ओवर टाइम हम देख रहे हैं कि बर्ड्स की डाइवर्सिटी कम हो रही है, दैट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द हेल्थ ऑफ द वेटलैंड. तो इस पे आई वुड लाइक सम मोर एलैबोरेशन. अदर थिंग इज फ्रॉम योर इंटरेस्ट इन बर्ड्स, इज इट ट्रू दैट also the migratory patterns of birds are changing because of climate change or other factors? So are there birds who are coming to India earlier or leaving later? Is there from your understanding, is there some change in the migratory pattern of birds also? So these two or three points I had. Yeah, please, Bhalu sir. नहीं, इसमें तो क्या है कि अब हम उतना साइंटिफिक नहीं हूं मैं, जो आप इतना डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो जैसे हर साल बदलता है, जैसे वेदर चेंज हो रही है, वार्मिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके अनुसार जो भी अपने यहाँ मिल रहा है उसको हम देखते हैं. रियली हम उसको वो नहीं कर रहे हैं, उसका रिपोर्टिंग 5 साल पहले, 10 साल पहले. अब जो भी आज है अपने को उसी को फेस करना है. इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीज तो वही है कि आज जो है वो, क्योंकि अब 15 साल 25 साल का अपन सोचेंगे तो मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि उसको लेक को ऐसे बरकरार रखेंगे तब तो ये लाइफ कंटिन्यू रहेगा. लेक को चेंज करते जाएंगे अपन, अर्बनाइज करेंगे, उसको बेच खाएंगे, कुछ और करेंगे, नगर निगम पैसा बनाएगा, कुछ भलती चीज हो जाएगी. तो नहीं करने देना, यही अपना टारगेट है कि लेक को बिल्कुल नेचुरल वैसे छोड़ दो आप. मतलब ये बिल्कुल इंसिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज
इससे अर्बन लैंड, अरबों की लैंड है, वो जो पैसा करेंगे तो मालूम नहीं कितने शून्य लगेंगे एक के पीछे, वो छोड़ो उसका कीमत, पर उसको वैसे रखने में ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मैंने कहा ना कि जैसे लंदन और न्यूयॉर्क में जो पार्क है बड़े बड़े, वो उन्हें छोड़ के रखे, उसकी वैल्यू आज 1,00,000 गुना हो गई है, क्योंकि उस टाइम से चल रहा है, वो मेंटेन करके रखा है उनने कि वो इसमें कोई बदल नहीं होगा साहब। उसको ब्लैक लिस्टेड में मतलब मास्टर प्लान से टोटल हटा के उनने बिल्कुल ग्रीन कर दिया, और ये कोई बदलेगा नहीं, ये हर प्रेसिडेंट कह रहा है और हर चीज कह रहा है, वो हर आदमी वहां पे चाहता है कि ये सही रहे। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसका ये एक माइंड बनाना इंदौर वासियों का कि सिरपुर लेक नो बदलाव नहीं होए कभी, ऐसा ही रहे, हम बहुत खुश रहेंगे, ऐसा रहेगा। तो ये हमको ऐसे ज्यादा लोग चाहिए, ऐसे लोगों को बनाना है, और यही अपना काम है अभी तो, क्योंकि काम मतलब ये काम नहीं के बराबर है, पर बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि इंदौर के नई जनरेशन आती रहेगी और पुरानी जाती रहेगी, पर नए वालों को कैसे सिखाओगे आप, और नए तरीके से कैसे सिखाओगे, फिर ये सब कंटिन्यूस है। अपना एजुकेशन भी बदलेगा, उनको भी समझाने का तरीका बदलेगा, ये सब, पर लेक वैसा को वैसा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सबसे ज्यादा। तो इसको कैसे मेंटेन करना, ये भी वर्कआउट अपने को ही करना है। ये जैसे हमारा एनजीओ है या हमारे आसपास के जो 25 लोग हैं, वो हम कंसल्ट करते रहते हैं कि यार इसको नहीं बिगाड़ना है अपने को किसी भी हालत में। यहाँ बिजली खंबे ये वो नहीं होना है, जो भी हम करेंगे सोलर पावर से बिजली लाएंगे, और कुछ डेवलपमेंट है तो उस तरह से लाएंगे। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे पेड़ बढ़ना है, और पानी का और लाभ होना चाहिए कि जिसमें इवापोरेशन कम हो, मतलब पानी ज्यादा रहे हमेशा। ये इस तरह के प्लानिंग है, ये करके तो लेक बरकरार रहेगा। और नहीं तो क्या है कि धीरे 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 मतलब दूसरी जनरेशन आएगी, अरे बोले छोड़ो यार पक्षी वक्षी छोड़ो, मारो बोले अब बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, मतलब कभी एंडिंग नहीं है उसका। टाइगर को मार के आप करने क्या वाले हो, मतलब ये कह रहे हैं हम तो कि उसके बाद क्या फिर, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। ये बात को आपको बहुत समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि लेक खत्म हो जाएगा, घर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और मजे मजे नगर निगम खूब पैसा बना लेगा, मतलब लेक तो चले जाएगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब लंबी सोच कह रहा हूं मैं कि ये परमानेंट सोच है आपकी, उसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है मेरे को। और ये मैं हैमरिंग करता रहूंगा, मैं जब तक हूं तब तक करूंगा। उसके बाद अब नई जनरेशन को तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी यही बोले, और इसको इम्प्रूव करें नेचुरली, इसी डायरेक्शन में इम्प्रूव करें, तब तो अपना काम हो रहा है। और तब तो अपन एस्टेब्लिशमेंट लगाते कि आज 100 साल हो गए इस कंपनी को, मतलब शिवाज रिगाल को 125 साल हो गए साहब, 150 साल से बोतल चल रही है बढ़िया, देखो इस तरह का ब्रांडिंग जो होता है, वही तो है कि सिरपुर आज 130 साल का लेके हमारा 130 साल बाद हम जितना बढ़ाएंगे उसका लाइफ उतना बरकरार रहेगा वो, और उतना उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये 200 साल हो गए साहब। आज लोग बोलेंगे 400 साल से वो जगह वैसी की वैसी पड़ी है यार, मस्त है। तो ये चाहिए अपने को उसको कोई डेवलपमेंट वगैरह के कोई प्लान नहीं करने हैं, ना पैसे उगलने के धंधे करने हैं। अपन तो न्यूट्रली चल रहे हैं, अपने को क्या मिल रहा है। आपने एकदम इंदौर की भाषा में बहुत अच्छे से बोला कि हमको कोई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट रियली बहुत मजा आया मुझे मालवी हिंदी सुन करके, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं भी एमपी से ही हूँ, इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके A very valid point विशाल कि हेल्थ ऑफ अ वेटलैंड इज बाय द बर्ड्स। और भालू सर, इसीलिए हम लोग आपसे आज बात करते हैं कि सिरपुर में, मैं आपको बता दूं जस्ट बाकी लोगों को जिनको मालूम नहीं है, सिरपुर 80 एकड़ की जमीन पे ही वाज द जमीन पे जिस पे वेटलैंड है, मोर देन 170 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया जब वो लॉबिंग कर रहे थे लोकल अथॉरिटीज के साथ। लोकल अथॉरिटीज को कैसे बताते, और सर ने अभी बहुत अच्छी बात कही विशाल जब आपके साथ बात कर रहे थे कि वो वैसा का वैसा रहे, इसके लिए भी तो किसी को काम करना पड़ेगा। तो आई कीप सेइंग कि इफ यू कैन नॉट मैनेज द वाटर बॉडी, एटलीस्ट डोंट डैमेज इट। और वो डोंट डैमेज इट में किसी को तो काम करना पड़ेगा, जो कि भालू सर 40 इयर्स प्लस से काम कर रहे हैं। आई सी अभी भी हैंड रेज्ड है। मिशा, वेरी क्विक क्वेश्चन, वी आर मोर देन 1.5 hours आज इस कैंडिड कॉन्वर्सेशन में। मिशा, गो अहेड क्विकली। हेलो, मेरे को ये ख्याल आ रहा था कि आपने बोल रही हैं आप, पहले वो बताएं प्लीज।
दिल्ली सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपने इतना लॉबिंग किया है म्युनिसिपैलिटीज डेवलपर्स पॉलिटिशियंस, तो आपकी अप्रोच क्या रही, उन्हें कन्विंस कैसे करा जाए, क्योंकि दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट नट्स टू क्रैक फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मतलब वो आपको थ्रेटन करते थे कि आपसे कोऑपरेट करते थे, या उनका ओवर इयर्स बिहेवियर बदला? टेल अस अबाउट दैट प्लीज। हाँ, वो मेरे को खूब खूब थ्रेटन भी है किया है लोगों ने वहां पे जाके। मतलब खूब दौड़ दपट हुई है, खूब झगड़ा टंटे हुए हैं। मतलब उस टाइम में गुंडागर्दी ऐसी हावी थी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 80-90 की बात है, द वर्स्ट ऑफ कंट्रीज सिचुएशन। मतलब गुंडागर्दी बिल्कुल पीक पे है इंडिया में। 80-90 आप ये ले लो ईयर्स। तो मतलब जो गड़बड़ हुई है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके साथ जो इंडिया को पूरा धर्रा बिगाड़ दिया है उनने, वो सुधरते सुधरते अभी मुश्किल हो रही है साहब अपनी। इतनी गुंडागर्दी और इतनी दादागिरी के साथ हड़पा हड़पी जमीन का और इधर उधर करना, वो सब जो हुआ है तब हमने फाइट की है। तब मतलब तब तो कोई सुनने वाला था नहीं, पर मेरे आई वॉज विद द मीडिया। मीडिया के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, तब भी मेरे पिक्चर बड़े अखबार में छपते थे यहाँ पे। और इवन इंडिया टुडे जैसे में आर्टिकल छपते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो आते थे, और इंदौर के लोकल अखबार कोर्स मेरे साथ थे, तो आज भी है वो सब। और इनके साथ लेके ही चले अपन, क्योंकि इट इज नॉट ए माय वॉइस, इट इज वॉइस थ्रू मीडिया जा रहा है। तो वो एक साथ जैसे लाख लोगों को पता पड़ता है क्या हो रहा है वहां पे। तो आज जितने भी अखबार लोग पढ़ते हैं उससे वो फैलती चीज, और उसका सपोर्ट मिलता है। वो सपोर्ट मतलब क्या है कि उसमें से ही एक दो ऐसे क्वेरीज आती है कि वो अपने हो जाते हैं आखिरी में। तो ये ऐसी धीरे धीरे चीज बढ़ती है। ऐसा आप अपन भाषण तो दे ही नहीं रहे कि सुनो भैया हेलो हाय करके, ऐसा कुछ नहीं है। वो रियलिटी है। कभी कुछ छिपाई नहीं चीज हमने, कभी कुछ झूठ नहीं बोला, कभी कुछ भी नहीं किया है उसमें। हमारा इंटरेस्ट मतलब आज 800 एकड़ में तालाब है हमारा, पानी और लैंड। 1 इंच जमीन नहीं हमारी। मैं कहता तो 50 एकड़ मेरी जमीन होती आज वहां पे आराम से। मतलब कोई नेता ऐसा नहीं है पागल कि जो 100 एकड़ जमीन 50 एकड़ जमीन खुद कर ले। पहले हर जगह करते हैं वो अपनी, पहले तो अपना ही झंडा गाड़ते हैं वो। तो ऐसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे। मैं तो 2-3 बेडरूम के फ्लैट में इंदौर में रहता हूँ। इंदौर से 10 किलोमीटर मेरा तालाब, यहाँ से जाता हूँ आता हूँ सब करता हूँ, अपने खर्चे से करते हैं। और ये एक जो तड़प है हमारी, पर अब एक काम पकड़ के रखा है, उसको कम से कम कंटिन्यू करने की इच्छा भी है। और उसके साथ जो जुड़ना चाहते वो जुड़े। और नहीं तो उसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है। नहीं भी मैंने किया, मालूम नहीं क्या होगा तालाब का, मालूम नहीं मेरे को। क्योंकि वो सोचता हूँ मैं कभी कभी कि क्या होगा अपन नहीं जाएंगे तो होगी तो सही गड़बड़, गड़बड़ तो होगी। क्योंकि आज हमारे इंदौर में एक एमपी है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 8 एमएलए है। वो पूरे बैठे इस जमीन पे, मतलब उनके निगाह में ये सब चीज। और एक भी वहां पे पटकता नहीं दादागिरी करने। इनको सबको हमने संभाल के रखा है, एंड दे आर गुड फ्रेंड टू मी। तो ये एक रिलेशन बनाना, इसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बदलते जाते हैं, इलेक्शन होते जाते हैं, और नया नया आदमी आता रहता है, नई नई आइडिया है, झाड़ काटो, ये करो वो करो। हर कोई नगर निगम के इतने प्रशासक हो गए, इतने कमिश्नर हो गए, हमारे डिविजनल कमिश्नर बदलते रहते हैं, इनको सबको साथ में लेना पड़ता है हमको। और एक कन्विंस आइडिया है जो भोपाल में हम कन्विंस कर देते हैं बड़े सेक्रेटरियल लेवल पे कि अच्छी चीज है, तो वही अपन कह रहे हैं कि अब इसको मेंटेन रखना है बस हमको। इसको और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, ना पैसा चाहिए किसी डेवलपमेंट के लिए, हमको कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। कभी पैसा नहीं मांगते। पैसा लाया है हमने 25 लाख रुपए। हमारे सुमित्रा महाजन ताई जो है यहाँ के एमपी थी, वो स्पीकर थी यहाँ मध्य प्रदेश इंडिया की, उनने 25 लाख रुपए दिए हमको। और 25 लाख जावड़ेकर जी जब एनवायरमेंट मंत्री थे, उनने 25 लाख रुपए दिए। हम तो हमारे दोस्ती के हिसाब से हम पैसा लाते और सरकार को मिलता है पैसा। वो हमारे जेब में थोड़ी जाता है, कोई एनजीओ को भी कुछ नहीं मिलता है। अभी तक थैंक यू तक नहीं दिया है हमने, हम उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। और पूरा डाटा हमारा है वहाँ पे, पूरे 175 बर्ड और 180 बर्ड का डाटा पूरा हमारा चल रहा है वहाँ पे। हम बोलते बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए, कभी भी यूज करो उसको, अच्छे के लिए करो। बस इट्स ओनली प्लस पॉइंट है कि उसको बरकरार रखो।
हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं हो। हमको और पैसा नहीं चाहिए, और डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए वहाँ पे, लाइटिंग नहीं चाहिए, रोड्स नहीं चाहिए, खाने पीने की दुकानें तो बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे, एक भी दुकान नहीं है अभी तक। झाड़ों को 1 लीटर पेंट नहीं लगाया अभी तक, 25-20 साल हो गए। एक मतलब ये दमखम रखते हैं हम कि उसमें खर्चा ऐसा नहीं होना है कि जो फालतू कर रहे हैं अपन, जबरदस्ती पेंट कर रहे हैं झाड़ को, हमको नहीं चाहिए वो। हमने कहा बिल्कुल नेचुरल में बढ़ेंगे झाड़ सब, एक भी झाड़ पेंट नहीं होता है, कभी खंबे ये वो रेलिंग वेलिंग कोई पेंटिंग डेंटिंग नहीं है वहाँ पे। तो नहीं के बराबर खर्चा है हमारा, हम मांग थोड़ी रहे। हमको तो नेचुरल में C2 कहते हैं, SITU, उसको जैसे है वैसे उसको डेवलप करना है हमको, जिसको हम उसको वैसे ही ले रहे हैं कि जिसको नेचुरल एक लैंड है और वहाँ पानी है तो अपने आप ग्रोथ होगी, ये हमने समझ के चला है। उसको कोई नया झाड़ दूसरी वैरायटी नहीं, मालवा के से दूसरी वैरायटी नहीं लगाते हम झाड़ों की भी, वहाँ सिर्फ हमारी वैरायटी लगती है। वहाँ हिमालयन ट्रीज नहीं मिलेगी आपको, अशोका ये कम मिलेगी। अभी नगर निगम है वो लगा देते हैं फालतू का, पर अब करे क्या, वो नहीं मानते। हम जो कहते हैं उसका अपोजिट करते हैं, वो हमेशा ऐसा ही है कि हमने बांस कहा तो वो अशोका लगा देंगे, हमने फलाना कहा गुलर कहा तो वो और कुछ लगा देंगे। ये हमेशा क्रॉस होता है, क्रॉस होता है। और ये क्यों होता है ये नहीं समझा है, क्योंकि अब नई नई आइडिया है, नया प्रशासक आता है उसको लगता है कि मैं एकदम चकाचक कर दूंगा सब चीज को, करता धरता कुछ नहीं, 3 साल में चला जाता है, 3 साल में बदली होके अपने घर चला जाता है, जहाँ जाना है जाता है। और उसको इंदौर से लगाव नहीं है, हम इंदौर बॉर्न है, हमको तो लगाव इंदौर का है, उनका हमारा तो घर जैसा है पूरा, मतलब सिटी पूरी हम एक घर जैसे लेते हैं उसको, इतना बड़ा घर है अपना, एक क्या मतलब 40 लाख लोग ले रहे हैं, वो सब परिवार है समझ लो, तो उसको उस तरह से ले रहे हैं हम। और कोई उसमें पर्सनल नहीं कुछ हमारा, कहीं पे भी नहीं पर्सनल, और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, मत दो पैसा तुम, और फिर चिल्लाना फिर हमारा काम है, मतलब उसके सिवाय अब मानो नहीं मानो हम तो चिल्लाएंगे, ये कह के करता हूँ मैं काम, ये कह के करता हूँ। और सब लोग डरेंगे, आप मेरे को दिया आपने चिल्लाने का, तो उसको नहीं रोकते तुम, और लोग डरेंगे भी, डरते भी है इसीलिए ला रहे सब। अच्छा ये क्या है, ये चिल्लाने वाला ही निकला है, ऐसा है तो लो, वैसा लो, तुमको बुरा लग रहा है तो करो। आपसे आप कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं इसलिए भी लोग डर जाते हैं, क्योंकि बेनिफिट बहुत पर्सनली लिया है, और मतलब वो कोई मेरा नहीं कर रहा हूँ, मेरा कभी कुछ कहीं पे भी हमारा कुछ नहीं है इस तरह की पब्लिसिटी में। अब नेचुरली हम ही करते तो नाम आएगा इधर उधर, ठीक है, पर वो हम ही तो फ्रंट पे रहते हैं, मुख्यमंत्री आता हम रहते हैं, प्रशासक है हम वहाँ हैं, कोई भी आए भोपाल से विजिटर, इधर सुनीता नारायण, अरशद रमानी, ऐसे कई बड़े बड़े लोग, वाकानेर, अपने ये सब आते हैं बड़े बड़े लोग, उनके साथ हम रहते हैं वहाँ पे, बिल्कुल रहते हैं। मिनिस्टर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन आते हैं, ऐसे कई लोग आते ही रहते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ तो हम ही रहते हैं फिर, क्योंकि उनको अटेंड करना और बताना। नहीं तो सरकारी आदमी क्या करता है, तो खूब सारे पक्षी आते हैं, सब पक्षी आते हैं, पक्षी पक्षी पक्षी, मतलब उनको एक भी नाम नहीं पता है, मतलब एक भी नाम, कबूतर भी नहीं पता है, बता आप क्या करें अपन। तो इतना भी नहीं, यहाँ खूब सारे पक्षी, मेहमान पक्षी आते हैं, क्या मतलब क्या आता है, मतलब क्या बोल रहे हैं वही नहीं समझ रहा है उनको। तो कम से कम इतने साल के बाद कम से कम वो हमको तो बुलाते ही, फिर यार उनको बुला लो भैया, नहीं तो मर जाएंगे अपन, समझाएंगे कौन इनको VIP को समझाएगा कौन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके पास फिर, और फिर है इम्पोर्टेंस, उसका फायदा तो लेते ही नहीं अपन कुछ, अपने को फायदे चाहिए ही नहीं। ये हमारा एक साइड बाय साइड काम चल रहा है, मेरा लिविंग नथिंग टू डू विद दैट, मेरा लिविंग मेरे फोटोग्राफी से, मैं पेंटिंग बेच खाता हूँ, मेरे पेंटिंग ये स्कल्पचर है, ये सब काम होते हैं मेरे प्रमोशन वाले। मैं अभी क्रिकेट का म्यूजियम कर रहा हूँ यहाँ इंदौर में, MPCA का जो होलकर स्टेडियम है यहाँ पे, जो वनडे होते हैं वहाँ पे हम म्यूजियम कर रहे हैं वहाँ पे क्रिकेट का। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मध्य प्रदेश में बनेगा म्यूजियम, जो क्रिकेट का म्यूजियम बनेगा, और उसके लीजेंड है CK नायडू, मतलब 100 ईयर ऑलरेडी, 100 ईयर पहले इंदौर इंग्लैंड में खेल चुका है, और वो तब इंडिया के कैप्टन थे, उस जमाने की बात कह रहा हूँ मैं। तो इंग्लैंड, इंदौर हैज गॉट ए स्टोरी ऑफ क्रिकेट, और उसमें होलकर की खूब देर में स्टेडियम बना है उनका बड़ा यहाँ पे, और हमारे अच्छे होलकर के साथ भी कांटेक्ट अच्छे हैं मेरे,
और अच्छे रिलेशन है तो उससे अब एस्थेटिक वगैरह सब म्यूजियम में सब चाहिए, तो वो सब काम आ गया मेरे में। तो अभी शानदार बनेगा, 2-4 महीने लगेंगे, अभी शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा काम, जगह स्टेडियम में ही है। तो इम्पोर्टेंट लर्निंग हियर इज कि प्रोफेशन और पैशन दोनों साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो भालू सर आपके लाइफ से, क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, इसलिए ये मैं देख पाती हूँ कि किसी एक चीज के पीछे लग जाना पड़ेगा, नहीं तो खुद को भी शांति नहीं और मतलब कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं। जो आपके अंदर जो एक अनरेस्ट है, और जो इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं सबके सामने लाना चाहती थी, आपका जो एक डायनामिक्स टू अंडरस्टैंड नेचर एज वेल एज पीपल, कि हाउ यू आर रियली going along with both of them equally with वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वो शायद इस बार रामसार का भी इसीलिए एक थीम भी है। आज इस बार इस साल का पूरा थीम ही रामसार वेटलैंड्स ने पीपल एंड नेचर रखा है। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू फॉर लॉन्ग, हम लोग बहुत लंबे हैं चले गए आज बातचीत में, मोर देन 1.5 hours। सो भालू सर, आज हम यहाँ कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं चैट बॉक्स में, आपको मैंने बहुत लंबा रोक के रखा, मुझे मालूम है आप अनवेल भी थे, और मैं नहीं ठीक है, जो भी हो जाता है वो अच्छा है, लगता है मजा आता है, सब कुछ हो जाता है, माहौल में अपन है तो अच्छा है। इतने समय से, तो इसलिए मैं आपसे सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि आप आए, हम लोग सबको बताएं, क्योंकि 40-50 साल का एक लाइफ स्पैन किसी के साथ, एक लेक के साथ बिताना और उसको 1 घंटे में बताना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, और वो करके देखना पड़ेगा, और बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए मैं आपको शत फिर से नमन करती हूँ, और मैं बाकी सब लोगों को भी ये कहना चाहूंगी कि अगला सेशन जो है वो भी हमारा इसी थीम के ऊपर ही है, कि हम बात करेंगे, वेटलैंड्स डे का ही कंटिन्यूअस रहेगा, और हम इसी सेशन को ही कंटिन्यू करके पार्ट 2 में जाएंगे, विच इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और हमारे साथ इक्वली गुड स्पीकर्स हैं। भालू सर, अगर आप ज्वाइन करें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप जानते भी होंगे अनिल मेहता जी आ रहे हैं, डॉक्टर अनिल मेहता फ्रॉम उदयपुर। ही इज ऑल्सो नोन एज द लेक फादर। We are very excited to have him, and he will be joined by Director Wetlands International Ritesh Kumar, and a good friend of ours, and I think Vishal also knows him very well. So next week we talk about wetlands for people and nature, continue करेंगे। भालू सर ने ग्राउंड रिपोर्ट दिया, अब हम थोड़ा सा ग्राउंड और थियोरेटिकल पार्ट और इंटरनेशनल सिनेरियो भी देखेंगे वेटलैंड्स इंटरनेशनल के साथ। Do join us on 9th of February to get into the part 2 of it, and where we see international as well as local dynamics of wetlands and people and nature. And they will be joined by a beautiful girl from Hyderabad who also worked on the dynamics of people and nature, and she will be our discussant. So I thank you all for joining us today and for this candid conversation. As anticipated, that I was really excited to have Bhalu Monde sir to talk to us about his life and share this, this Indori art of speaking, दिल से बात करने का जो मजा है, वो भालू सर ने आज फिर बहुत अच्छे से हम लोग को बताया। और की लर्निंग है कि लग जाना पड़ेगा। अगर आप वेटलैंड से प्यार करते हैं या वाटर या किसी भी चीज के साथ, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, क्लोज ऑब्जर्वेशन, सबको साथ में लेके चलना, क्यूरियोसिटी होना, लड़ने के लिए तैयार रहना, सवाल करना, आई थिंक ये सारी चीजें हम लोग काफी टीचर्स हैं यहाँ पे, हम लोग को ये स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे साथ आए। मैं तो आपसे फोन पे हमेशा परेशान करती रहूंगी, पर आज सब लोग के साथ आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, thank you all of you, and please take care of yourself and do join us on 9th of February for the part 2 of this session. Thank you all. Thank you presenters for joining us today and enlightening us with your wisdom. Also thank you all the participants for joining us and making the session interactive. Besides walking and talking water, worries and wisdoms collectively, we see this as a platform to cross-connect and expand our network and explore possible collaborations. We are also making notes to publish both scientific and non-scientific work.
Here is a glimpse of some of our writings. You may reach us through email, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, and also look at our website www.w4w.in. We look forward to your suggestions and comments to make the series more meaningful and engaging. And meanwhile, we hope that you appreciate today's session. We represent Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, Terry School of Advanced Studies, New Delhi, Environmental Design Consultants, Ahmedabad, FluxGen Sustainable Technologies, Bangalore, Counterview, and we are supported by Wikis Water Resources Council. We truly appreciate your support and encouragement in conducting this series, and we hope that you will stay tuned with us through our social media platforms and our website, and you will write to us at our email IDs.